invite Dr. Rathore, sir. Sir, we welcome you all. We welcome you, sir. The platform is all yours, sir. So thank you so much, Dr. Kosam, for introducing me. I'm audible. Yes, sir. You're audible, sir. Okay, thank you so much. So, good evening, everyone. At the outset, I am highly thankful to the organizer, especially Dr. Anil, who has given the opportunity to interact with such a distinguished audience. So, I welcome in my this introductory interactions in this training program. So actually, the when I see the title of the training program, Novel Production System. So I must appreciate the organizer. They have framed something. They have designed something to discuss about the system. The biggest problem in our country is that we are not discussing much about the system. We are discussing about the components. Components, suppose, but in crop production, in agriculture. So there are so many challenges are there in present time. Very serious challenges, which are, you can say, they are threatening the sustainability of agriculture production system in our country. Though we are one of the largest producer of many of the commodity in the world, but our production system is not sustainable. Our production system is not very safe. Means the resources or level of resources we were using in earlier times, they are not in the same condition today. In times to come, means for our future generation, if we will continue with the same production system, the system will not support the livelihood, food security of the future generations. That's why it is very very important to discuss about the system. तो आप सभी लोग जानते होंगे सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम मतलब कई सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और इसमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, सारी चीजें रिसाइकिल होती हैं और इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं और जो भी आपके इनपुट हैं उनकी यूज एफिशिएंसी बहुत हाई लेवल की होती है। अगर हम बात करें अपने देश की, भारत देश की और एग्रीकल्चर के बारे में कि प्रेजेंट सिनेरियो है क्या, जैसे कि आप लोग जानते होंगे हमारे पास करीब 329 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया है और अगर हम पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें अपने आप को तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। वी आर नॉट वेरी रिच इन द रिसोर्स availability. We are only sharing 2.4% of the land area of the world. Just please notice it. We are having only 2.4% of the area of the world, only 4% of the water resources of the world, but at the same time we are supporting a huge population. Means 16-17% of the world population, they are residing only in India. And again, if you think about the livestock, especially the cattle, buffalo, more than 16-17% cattle we have in India of the world, more than 50% buffalo we have in this country. So we have huge demand of the food and fodder on the one side. On the other side, our resources are very, very limited. And on the third point, if you see, which is of the great cause of the worry, is the poor resource use efficiency. सपोज अब रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास बहुत सारी डिमांड है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। अब आप देखिए हमारे पास 140 करोड़ हम लोग ऑलरेडी हो चुके हैं और वेरी फ्यू, मतलब आफ्टर 4-5 ईयर वी विल बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। सो हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ डिमांड, मींस डिमांड ऑफ द फूड, डिमांड ऑफ द वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, डिमांड ऑफ द फॉडर। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस चीज को कैसे मीट आउट करें। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपनी लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्स कम होते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करें जिससे कि हमारा प्रोडक्शन इस तरीके से होता रहे कि हमारे जो आने वाली जनरेशन से आने वाली पीढ़ी है उनके खाने पीने के लिए कोई समस्या पैदा ना हो। आप लोग जानते होंगे जैसे कि देश आजाद होने से पहले कई सारे जो है अकाल या फेमाइंस आया करते थे। बंगाल में आपने सुना होगा फेमस बंगाल फेमाइन, कई लाखों लोग मर गए उसमें खाने की कमी की वजह से।
लेकिन उसके बाद बिकॉज ऑफ साइंटिफिक इंटरवेंशन, बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज, बिकॉज ऑफ means better percolation of this technology to the farmer field, and farmers active support to all the technology which has been produced by the scientists. It happens that at the time of independence our production was only 50 million ton, और आज आप लोग जानते हैं हमारे पास कितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। आजादी के समय 1950 में आप देखेंगे हमारे पास 50 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, आज बढ़ करके ये 314 315 मिलियन टन हो गया है। आप देखेंगे कि जब 6-7 गुना जो है खाद्यान्न में बढ़ोतरी हुई है। तो ये बढ़ोतरी का अगर आप कारण देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, कई लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक इंटरवेंशंस हैं, जो ब्रेक थ्रू हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब आप देखेंगे 1950 में भी हमारे पास जो कल्टिवेबल लैंड थी वो लगभग सेम है, और इवन आज के समय में आप देखेंगे जिस पर हम खेती योग्य जमीन है वो कम होती जा रही है। उस समय हम कभी पढ़ा करते थे हमारे पास करीब 155 मिलियन हेक्टेयर एरेबल लैंड थी। एरेबल लैंड आप जानते हैं जिस पर खेती की जाती है, और आज ये घट करके करीब 139 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हो गई है, 139 मिलियन हेक्टेयर। बिकॉज क्या हो रहा है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो कई जगह आप देखेंगे जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, ज्यादातर जो अर्बनाइजेशन हो रहा है और ज्यादातर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एग्रीकल्चर लैंड पर ही होता है। तो कई सारी फर्टाइल लैंड कई जगह पर आप देखेंगे वो दूसरे नॉन एग्रीकल्चर यूज में उनका कन्वर्जन हो रहा है। तो एक तरफ तो एग्रीकल्चर लैंड उनकी कमी होती जा रही है, दूसरी तरफ इसके साथ साथ में जैसे हम खेती का काम करते हैं, खेती में सबसे जरूरी चीज जमीन के अलावा होता है पानी। अगर हम पानी की भी बात करें तो हमको करीब हमारे यहाँ रेनफॉल अगर आप देखेंगे सफिशिएंट है, मतलब 4000 cubic kilometer every year we are getting the precipitation. It's a huge quantity of water, but इसका less than 30% we are able to utilize, और उससे ज़्यादा यूज करना बहुत मुश्किल भी है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की है वो काफ़ी कम होती जा रही है। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी के आधार पर अगर हम देखें तो अपना देश जो है एक वाटर स्ट्रेस कंट्री है। वाटर स्ट्रेस का मतलब कि ऐसा कंट्री जहाँ पर कई करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मिलना भी मुश्किल है। तो इन सारी चीजों के बीच में, इन सारी समस्याओं के साथ ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्या करें जिससे कि हमारा संसाधन जो भी है उनका बढ़िया तरीके से उपयोग हो, उनकी दक्षता बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा जब हम टिकाऊ खेती कर सकें। अब आप लोगों ने देखा होगा जो लोग कई सारे एकेडमिशियंस इसमें जुड़े हुए हैं, अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी कई सारी जगह पर आज के समय में भी आप देखेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी में काफी स्कोप है इसको बढ़ाने का। कई सारी जैसे हम बात करें फूड ग्रेन्स के बारे में, फूड ग्रेन्स में वी स्टैंड नंबर 2 इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हमारे पास करीब 314-315 मिलियन टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वी स्टैंड नंबर 2। Similarly, in case of fruits and vegetable also we stand number 2. We are producing around 345 million ton of the fruits and vegetable. Or milk production में we are number 1 in the world. We are producing more than 200 million ton of the milk every year. तो कई सारी कम्युनिटीज में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन at what cost? Suppose we are doing the agriculture production. अपने कंट्री में अगर हम बात करें, मेजर जो क्रॉपिंग सिस्टम है आज के समय में आप लोग जानते होंगे वो राइस और व्हीट, धान के बाद लगाते हैं गेहूं। सबसे बड़ा जो है फसल प्रणाली है, सबसे बड़ा सिस्टम है, और ये सिस्टम एक समय बहुत जरूरी था। देश की फूड सिक्योरिटी, लोगों को खाना मिल सके, ये काफी कुछ डिपेंड था इस सिस्टम के ऊपर में। कौन सा सिस्टम? राइस व्हीट सिस्टम। इसमें अगर हम देखें तो करीब 12.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया, 125 लाख हेक्टेयर एरिया है जो इस सिस्टम के अंदर में आता है। कई सारे एरिया अपने देश में ऐसे हैं जहाँ पे हम धान की खेती करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली वो धान के लिए उपयुक्त नहीं है। आप देखेंगे आगरा मथुरा के आसपास भी लोग खेती करते हैं, कई सारे पंजाब वेस्टर्न यूपी में कई सारे एरिया हैं जहाँ पर धान के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मिट्टी इस तरह की नहीं, हल्की मिट्टी है, बहुत पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन ये फसल सेफ एंड सिक्योर एंड किसानों को सीधा फायदा होता है, तो कई लोग इसको लगाते हैं। और आज के समय में हो क्या रहा है कि हमारे पास धान और गेहूं का एडिक्वेट क्वांटिटी है, इसकी समस्या आ रही है स्टोरेज की। कैसे हमको स्टोरेज करें इसका? कई सारे हमारे गोदाम्स हैं बहुत बड़े बड़े एफसीआई के,
उनमें इसको स्टोर करते हैं, कई लाखों टन जो है बर्बाद हो जाता है कई सारी कारणों की वजह से। तो लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कि भारत सरकार एक 3 कानून लेकर के आई, उसमें यह था कि वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी, जिससे हमारे पास जो एडिशनल प्रोड्यूस हैं उसको हम बढ़िया तरीके से स्टोर कर पाएंगे। स्टोर करने के साथ साथ में सपोज हमारे पास ज्यादा कोई कमोडिटी है, राइस और व्हीट हमारे पास बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं एक समय तक तो आप रख सकते हैं, उसके बाद में ये बेकार होने लगते हैं। तो अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम इनका पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग क्या कर सकते हैं, इनकी प्रोसेसिंग क्या कर सकते हैं। हमारे देश में हजारों करोड़ रुपए का खाद्यान्न ऐसे ही बर्बाद होता है क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग या पोस्ट हार्वेस्ट की फैसिलिटी नहीं है। और अगर आप देखेंगे सरकार का भी यही उद्देश्य था कि कैसे भी करके एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग को बढ़ावा दिया जाए, पैकेज्ड फूड को बढ़ावा दिया जाए, जिससे ना केवल इसमें वैल्यू एडिशन होगा, जिससे कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और मिल भी रहा है। कई जगह पर आप देखें कई सारे स्टेट्स में जहाँ एग्रीकल्चर एडवांस है वहां पर पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग वगैरह बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे हम बात करें, मैं रहने वाला आगरा का हूँ, आगरा में कई आलू का बहुत बड़ा क्षेत्र है, आलू खूब पैदा होता है। और ज्यादातर आप देखेंगे ओवरऑल जो आलू के जो बड़े बड़े किसान हैं वो बड़े प्रॉस्पर हैं, बहुत धनाढ़ हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आलू के दाम नहीं मिल पाते अच्छे तरीके से, तो वो आलू को कैसे डिस्पोज ऑफ करें, मैंने उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में आलू रख दिया, तो उसके बाद इतने दाम नहीं मिलते कि उसको निकाल के उसको बेच सकें। तो कई बार क्या होता है कोल्ड स्टोरेज वाले उसको फेंकने लगते हैं। तो इस जो एडिशनल कमोडिटी हमारे पास है जिसको हम सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे, उसको हम बढ़िया तरीके से प्रोसेसिंग करें, कुछ अच्छे अच्छे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं, तो इससे ना केवल सिस्टम मोड में हमारे जो रिसोर्स हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा, इसके साथ साथ में देश के लोगों को वो चीज मिलेगी जो उनको चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, कई सारी बातें हैं। और इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे अपने देश का जो एक एक फीचर है एग्रीकल्चर का, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि अपनी जो होल्डिंग साइज है, होल्डिंग हम समझते होंगे आप लोग, आलोक राय, होल्डिंग का मतलब होता है कि एक फार्म फैमिली के पास कितनी जमीन है। तो हमारे देश में करीब 14 करोड़ फार्म फैमिली हैं। इस देश में करीब आज भी मोर देन 50% लोग हैं वो खेती पे डिपेंडेंट हैं, मतलब मान लीजिए 70 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती पे डिपेंडेंट है, 70-75 करोड़ लोग। लेकिन फार्म फैमिली होल्डिंग की हम बात जब करते हैं तो ये करीब 14 करोड़ के आसपास हैं। और ज्यादातर किसान अपने देश में वो आप जानते होंगे छोटे और मझोले टाइप के किसान हैं, दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड देयर होल्डिंग साइज इज लेस देन 1 हेक्टेयर। तो अगेन इट इज ए बिग चैलेंज फॉर एवरीवन, for government, for the scientists, for academia, how to make the small holder a economically viable system। कैसे बनाएं इसको। कई बार तो होता है भाई तो छोटा किसान है कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। कई जगह पे आप देखेंगे जिनके पास 1 एकड़ जमीन है वो भी इतनी बढ़िया खेती करते हैं, दे आर अर्निंग वेरी गुड एंड देयर लायबिलिटी आल्सो वेरी गुड। सो prospects are there, even the holding size is small, we can do the very good type of the farming। so उस तरह की हमको इंटरवेंशन चाहिए, उसके लिए हमको सिस्टम मोड में काम करना पड़ेगा। जैसे इसका आज थीम भी है नोबल प्रोडक्शन सिस्टम। अगर हम सिस्टम मोड में बात करेंगे तो हमारे फार्म में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो इसको हम बोलें कि ये बेकार है, ये गंदी चीज है, बेकार है, वेस्ट है। तो वेस्ट टू वेल्थ हम इसको बना सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ में जैसे आप देखेंगे अभी बहुत ह्यू एंड क्राई हो रही है कई जगह पर, आप देखेंगे इस मौसम में रबी लास्ट ईयर भी हुआ था, फर्टिलाइजर की बड़ी समस्या आती है, स्पेशली डीएपी की हम बात करें, यूरिया की बात करें, कई जगह पे बहुत समस्याएं आती हैं। कई लोग जुगाड़ लगाते हैं कैसे भी करके हमको फर्टिलाइजर मिल जाए। और आप सरप्राइज होंगे करीब इस समय जो यूरिया की बोरी है या डीएपी, इसको बहुत सारी सब्सिडी भी मिलती है सरकार की तरफ से। करीब 1.5-2 लाख करोड़ का जो है सब्सिडी जो है वो फर्टिलाइजर पे दी जाती है। और टू अवर सरप्राइज अगर आप देखेंगे जो फर्टिलाइजर कंज्यूम होता है अपने देश में उसका हार्डली 30-35% ही पौधों को मिल पाता है। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है, सभी को स्लो आ रही है कि आपको ही आ रही है? No, sir. The voice is fully audible. No, sir. Voice is audible. I think आपके problem is system में थोड़ा on problem your होगा। side. है ना? Yes, sir. You're audible, sir. ओके, थैंक यू सो मच।
तो बात यह है कि अब हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। फर्टिलाइजर हम ज़्यादातर फर्टिलाइजर का हम इंपोर्ट करते हैं। आप देखेंगे पूरा फास्फेट पोटेशियम फर्टिलाइजर हमारे 100% इम्पोर्ट होता है। नाइट्रोजन भी काफ़ी फर्टिलाइजर हम बाहर से लेते हैं। इसके अलावा जो इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो भी हम बाहर से लेते हैं। डीएपी के साथ भी वही होता है। और 1.5-2 लाख करोड़ का सब्सिडी सरकार इस पर देती है। उसके बाद इसका इतना ज़्यादा वेस्टेज है। सपोज 100 किलो आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, हार्डली 30 किलो यूरिया जो है पौधे को मिल पाती है। बाकी 65-70 किलो जी बर्बाद होती है। अच्छा, बर्बाद होने के बाद क्या होता है इसका? ऐसा भी नहीं है कि वो केवल आपको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। इससे बहुत बड़ा लॉस आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। यूरिया का जब लॉस होता है, जब पानी में जाती है, अंडरग्राउंड वाटर में जाती है या ड्रिंकिंग वाटर में जाती है, तो ये जो पॉल्यूशन होता है नाइट्रोजन का, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कई जगह पर जहाँ नाइट्रोजन का यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आलू के क्षेत्र हैं या पंजाब वगैरह में, वहाँ नाइट्रेट टॉक्सिटी वगैरह है, ये सब डेवलप होती जा रही है, हमारी टॉक्सिटी डेवलप होती जा रही है। इसके अलावा आप जानते होंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में बहुत बातें हो रही हैं आजकल। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जो आज हमें दिखती बहुत धीमे से है, इसका असर हमको बहुत धीमे से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में इससे बहुत इसके सीरियस रिपरकशन होंगे, इसके बहुत सीरियस इम्पैक्ट होंगे। इसलिए आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे सारे लोग इसके बारे में बहुत चर्चाएं कर रहे हैं। अभी COP27, आप लोग जानते होंगे कॉप का मतलब क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये COP27 में पूरे विश्व के सारे देश इसके मेंबर हैं। अभी इसकी वेरी रिसेंटली मीटिंग वाज हेल्ड इन इजिप्ट, शर्म एल शेख, इंडिया का भी बहुत बड़ा इसमें दल गया था। तो इसमें हुआ था कि ग्लोबल वार्मिंग पे गवर्नमेंट, कई सारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, लेकिन स्टिल द ग्लोबल वार्मिंग इज कंटिन्यू और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते जा रहे हैं। तो जब ये जैसे फर्टिलाइजर का आपने, एक तो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, फिर जो नाइट्रेट या नाइट्रस ऑक्साइड जो एनवायरमेंट में रिलीज हो रहा है, उसकी अगर आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, उससे करीब 350 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है नाइट्रस ऑक्साइड से। तो इनका एनवायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आज के समय में, जबकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं। हमको जो भी संसाधन है उनको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना की आवश्यकता है। ये अच्छे से इस्तेमाल तभी हो सकते हैं जब हम इनका प्रयोग सिस्टम मोड में करें। तो इसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं जिनके माध्यम से हम अपने संसाधनों को दक्षतापूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कई सारी चीजें, जैसे आज के समय में आप देखेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। एग्रीकल्चर में जब भी कहीं बात होती है, कोई कहता है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, परंपरागत खेती, जीवामृत, बीजामृत, बहुत सारी बातें आती हैं। तो सारी बातों का एक जो समरी है वो यही है कि कैसे भी करके हमको एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करना है। और जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल काऊ यूरिन या जीवामृत, बीजामृत से हम सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब इसके 3 डायमेंशन होते हैं। Any practice can only be sustainable when it meets the 3 requirements. पहली बात, इसका प्रोडक्शन कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल if you are doing the organic farming or natural farming and productivity is declining, that means you are not doing the sustainable farming. So means there must be a sustainable high level of productivity. Then number 2, there must be environmental और रिसोर्स कंजर्वेशन। मीन जो भी आप रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके साथ में कोई लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे अपने देश में इस समय हमारे पास करीब 139 मिलियन हेक्टेयर एरेबल लैंड है और पूरे के पूरी जो लैंड एरेबल लैंड पर खेती होती है उसमें एक या किसी अलग अलग प्रकार की डिग्रेडेशन फोर्सेस वहां पे काम कर रहे हैं। सॉइल का इरोजन हो रहा है, मृदा कटाव हो रहा है, मिट्टी की हेल्थ जो है वो बर्बाद हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है और जो टेम्पोरेली हमको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आगे आने वाले समय में इससे हमको बहुत नुकसान हो सकता है। तो दूसरी बात आती है कि हमको जो रिसोर्स है उनको कंजर्व करना है, और तीसरी बात आती है कंजर्वेशन के साथ साथ में जो भी रिसोर्स है हमको इंश्योर करना है
कि आज जिस स्थिति में हमको हमारे पास है, फ्यूचर जनरेशन आने वाली पीढ़ी है उसको भी उसी हिसाब से मिले। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है अपने देश में? जैसे हम छोटे छोटे थे, अपने गांव में रहते थे, हमने खुद देखा है। हमारे यहाँ जैसे मैं रहने वाला आगरा का हूँ, 40-50 फीट पे पानी मिल जाता था। बड़े आराम से कुएं से पानी खींच के अपने कोई रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। आज के समय में 300, 400, 500 फीट तक जो है बोर करते हैं, डीप बोर करते हैं, तब पानी मिलता है। कुएं तो सारे कुएं जो रस्सी से पानी खींच के पानी जो होता है ना, अगर लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं मिलेगा। पहले तो लाइट की भी आवश्यकता नहीं है, रस्सी जब पानी की आवश्यकता है, दे वर सो सेल्फ सस्टेनेबल दैट टाइम। लेकिन क्या हुआ, इतना मिसयूज हुआ उस टाइम में रिसोर्स का कि आज हमको वही पानी 300, 400, 500 फीट में मिल रहा है। दैट मीन्स वी हैव नॉट केयर्ड अबाउट अवर वाटर रिसोर्सेज, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ में आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं। जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि हम इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते बढ़िया तरीके से, सस्टेनेबल वे में हम कर सकते हैं। अगर हम सिस्टम मोड में काम करें तो जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी, चाहे 140 करोड़ लोगों की जो रिक्वायरमेंट है या जो लाइव स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, बशर्ते हमको ध्यान देना पड़ेगा गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे। क्या ऐसी इंप्रूव टेक्नोलॉजी है उनको हमको लिया जाए। ऐसा नहीं कि खेत में गए, कई जगह आप देखना, जैसे हम भी कई बार जाते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द फार्मर्स। इवन हम अपने घर पे भी जाते हैं, कई बार उन्होंने देखा खेत में पीलापन हो रहा है, दे आर नॉट बॉदरिंग कि उसमें किस वजह से हो रहा है, वो यूरिया लेके डालते रहते हैं। उन्हें लगता है यूरिया डाल देंगे हरा हो जाएगा। और उसमें किस तरह की स्ट्रेस है उसको आइडेंटिफाई करना है। और यूरिया का इस्तेमाल भी अगर करना है नाइट्रोजन का, तो उनका इस्तेमाल करने के तरीके होते हैं। और जैसे अब यूरिया का इस्तेमाल करना है, एक सिंपल तरीका होता है रियल टाइम नाइट्रोजन मैनेजमेंट। एक लीफ कलर चार्ट होता है 50 रुपए का, उसके हिसाब से अगर हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारी यूज एफिशिएंसी 30% बढ़कर के 60% तक हो जाती है। तो ये कुछ कुछ टेक्नोलॉजी है जिनके माध्यम से हम इनकी यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, न्यूट्रिएंट की यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। वाटर के बारे में बात करें, अपने देश में हम वाटर के, जल शक्ति मंत्रालय है आज के समय में ना, बहुत सारी बातें होती हैं कि वाटर की बड़ी समस्या है और वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है। सबसे बड़ा यूजर वाटर का अगर कोई है अपने देश में या कहीं बाढ़ में, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। मोर देन 85% वाटर जो अपने देश में फ्रेश वाटर है वो हम इस्तेमाल करते हैं खेती में। और खेती में हम इस्तेमाल क्या करते हैं, खेती में हम पानी की करते हैं बर्बादी। आप देखेंगे हमारे देश में ज्यादातर जो पानी लगाने का तरीका क्या होता है, फ्लड इरिगेशन। खेतों में पानी छोड़ दिया। आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल से भी जब तक लाइट रहती है पानी चलता रहता है, आवश्यकता है तो चल रहा है, नहीं है तो भी चल रहा है। तो पानी की बर्बादी की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। माइक्रो इरिगेशन, आजकल तो बहुत सारी चीजें आ रही, गवर्नमेंट इस पर बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है। कई जो जागरूक किसान हैं वो इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, कई सारी चीजें हैं जिन पे गवर्नमेंट का, इवन अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो मैनी ऑफ द टाइम ही से मोर क्रॉप पर ड्रॉप मींस हाउ वी कैन अचीव दिस टारगेट ओनली थ्रू माइक्रो इरिगेशन। तो कई सारे स्टेट्स में लोग कर रहे हैं, इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और वो इसका फायदा भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे आज के समय में बहुत सारी बातें होती हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। सबसे अच्छी जो एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में बात करें तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर सिस्टम, बायो इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर, है ना, इस तरह की बातें आ रही हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, ICM मॉड्यूल्स वी कॉल देम। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे इंटरवेंशन है, अगर इनका हम इस्तेमाल करेंगे, like integrated farming system, even one hectare of the area, small and marginal farmer also they can have the high level of productivity, profitability, better recycling of all the farm resources, farm waste, and they can have the better livelihood if they are practicing the foolproof integrated farming system. तो अब डबलिंग फार्म इनकम के बारे में बात हो रही है, कैसे करें। तो इसमें एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई किया गया है। बस इसमें फोकस करना है, जो किसान रियली में जिनका पैशन है खेती, वो उसको अपना सकते हैं और अपना करके इसका फायदा भी ले रहे हैं। कई जगह पर आप देखेंगे लोग मार्केट ड्रिवन, सोसाइटी ड्रिवन, दे आर डूइंग द फार्मिंग, दे आर गेटिंग ऑल द एडवांटेज फ्रॉम ऑल दिस प्रैक्टिसेस। कई जगह पे कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात हो रही है ना, कई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। ये भी बहुत अच्छी चीजें हैं, कई सारी अच्छी बड़ी कंपनियां हैं
वो पढ़े लिखे लोगों को लेके आती है, फार्मर के साथ में एग्रीमेंट करती है. They are doing the content farming is being practiced in many of the states, and farmers, all the stakeholders, they are getting the advantage out of this. तो कुल मिला के बात ये है, समस्याएं, चुनौतियां विशाल हैं, इनॉर्मस हैं, संसाधन लिमिटेड हैं और इनका बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल भी हो रहा है. तो इन चैलेंजेस को कैसे मीट आउट करें, इसके लिए बहुत ही आवश्यकता है कि हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और उनको खास करके सिस्टम मोड में करें. सिस्टम मोड में होता क्या है, जैसे अभी आपने सुना होगा ये पराली के बारे में. पराली कितनी बड़ा मुसीबत बन गई है सभी लोगों के लिए और इससे कितनी समस्या हो रही है. लेकिन पराली कैन बी ए असेट टू द फार्मर. अगर इसको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे कई सारे फायदे हो सकते हैं. लेकिन पेशेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. तो सिस्टम मोड में इफ वी कैन डू द फार्मिंग, and especially that's why the topic of the this training program, novel production system. Novel means something unique. Novelty means like we have to follow the ecological approach by which there should be no waste. Everything is recycled in the farm. And like I think many of you might have seen this Indian farming system. कई सारे component होते हैं. We are optimizing the different components and we are recycling waste product of the one component into the another component. So there is complete recycling of different product and byproducts, and around the year we are getting something with other things, and there is good means the farmer focuses there to how to achieve the how to practice the good agricultural management in limited area, and by that way it is possible that many of the area, many of the farmers, many of the states, they are getting advantage out of this. So these are some of the points I would like to discuss with you. So once again, I thanks everyone. I thanks organizers, especially Dr. Anil. And if you have any query, and we can have interaction. So that's all from my side. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for giving us insight about resource conservation. What are the current challenges in agriculture, be it proper usage of resources or need for making small and marginal farmers enter sustainable system or reducing carbon footprint. And to mitigate it, we have to direct agriculture towards sustainability with good agricultural interventions. It was extremely informative, sir. Thank you very much. So, moving forward, I would like to welcome our guest speaker, Dr. Kapila Shekhawat, Senior Scientist, Agronomy, IARI, New Delhi. Dr. Shekhawat has done UG from SK Rajasthan Agriculture University, Bikaner, Masters from CCS Haryana Agriculture University, Hisar, and PhD from IRI, New Delhi. She is a gold medalist during her UG and PhD program. Her specialization is in the field of resource conservation technology. She has served as a scientist in different institutions, ICR NAM, Hyderabad, CSSRI, Karnal, DRMR, Bharatpur, IRI, New Delhi. She has authored 55 research papers in national and international journals, 2 books, and more than 100 articles. She has been awarded with SS Brains Award for Best Thesis in 2009 by ICR IRI, Dhiru Morarji Memorial Award for Best Paper in Fertilizer News in 2007 by Fertilizer Association of India, New Delhi, Bhamasha Award for Academic Excellence in 2002 by Maharana Mewar Foundation, Udaipur. So I would like to invite Dr. Kapila Shekhawat, ma'am. Ma'am, we welcome you. The platform is all yours, ma'am. Thank you. Thank you so much for those nice words of introduction. I don't know whether I deserve it or not, but I wanted to share my presentation. I'm still unable. Can you allow me to start my presentation? If somebody from your side has to get it done. Yes, ma'am. I would like to request technical team to please allow ma'am to share her screen. Ma'am, you can share Yes. share your screen. Yes, now it's open. Just a second.
are the slides visible now? Yes, ma'am. Visible, ma'am. Okay, so again, sincere thanks for those nice words of introduction, and sincere thanks for for giving me the opportunity to have an interaction with you. And I was listening to the previous lecture or the insight, you can say, and Dr. Rathore has raised many of the points which are relevant to in the present context regarding the challenges, regarding the scope, and actually that was a SWOT analysis, I would say. He highlighted the strengths, weaknesses, opportunities, and the threats. So since we all are in the field of agriculture, and in most of his presentation, he has highlighted towards the ultimate goal of reaching the sustainability. There is no doubt in the point that there is a lot of demographic pressure when we talk about a country like India, where we are the host of almost, we can say, 1/6 of the entire population of the world. We have to focus and no doubt the land availability or the resource availability is limited, rather it is shrinking with the coming time. We have been so lavishly spending the resources we had, but now there is a resource crunch. Like that, we have a natural resource crunch as well. So we need to focus or maybe probably reorient our entire the entire practices which we have been following, and that the main focus of my presentation will be, I'll be discussing mostly about the nutrient management and how important it is, what are the new challenges and what are the opportunities we have, right? So when we talk about nutrient management, and it is directly related with the production systems, and sir has also mentioned that the declining factor productivity is really a challenge. So थोड़ा हिंदी में समझाइए आप। अच्छा, ठीक है, मैं Yes, ma'am. कोशिश करूंगी। Thank you. लेकिन प्रेजेंटेशन को थोड़ा हिंदी में बनाना मुश्किल होता है, तो No, ma'am, इसमें बस कोई समझा बिल्कुल दीजिए ठीक हिंदी है, में। ठीक है, ठीक है। बहुत तो लैंग्वेजेस कर दो मैम प्लीज। जी, तो हम जैसे कि डॉक्टर राठौर के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं कहना चाह रही थी कि मेरा जो लेक्चर है उसमें हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या नए एस्पेक्ट्स हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, उसके बारे में हम थोड़ा फोकस करेंगे। So I think the audience जो है हमारे साथ में, we have some students also, madam. Is that true? Yes, ma'am. Okay, fine. तो Yes. इस तो हम जी एक हम हमेशा आज तक, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम था 1960s से लेके 1966 के आसपास में, जब हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, और आज की एग्रीकल्चर को भी हम उस समय से ही कंपेयर करते हैं, और वो इसलिए कि वो एक बेंचमार्क है हमारे लिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से अब तक हमने कितना ट्रेवल किया और कितना सक्सेसफुली ट्रेवल किया। अभी क्या होता है कि जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो उस टाइम तो हम बेगिंग बाउल थे, है ना, हम लोग अनाज के लिए भी दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे। उस समय हमारा पूरा फोकस जो था वो ये था कि कहीं ना कहीं हम सीरियल्स में या जो अनाजी फसलें हमारी जितनी है उसमें हम सस्टेनेबल हो पाए। उस हिसाब से हमने अपनी एग्रीकल्चर को ओरिएंट किया। लेकिन उसके बाद जब हम 20, 30, 25 साल के बाद, उसमें क्या था कि हाई इनपुट एंड हाई रिस्पॉन्स, आप न्यूट्रिएंट डालिए, आप इरिगेशन दीजिए, आप हाई यील्डिंग वेराइटीज लीजिए और अच्छा रिस्पॉन्स लीजिए, यही फोकस हुआ करता था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के 25, 30, 40, 50 सालों के बाद में हमको समझ में आने लगा कि नहीं, उसके अंदर भी कुछ खामियां थी, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम, यानी कि उस प्रॉब्लम जो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने सॉल्यूशंस बताए थे उसके बेसिस पे हमारे ऊपर अब आजकल क्या प्रॉब्लम्स है। अगर अपन उस समय के ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय से आज के इंडियन कंटेक्स्ट में या भारत में आज जो कृषि का सिनेरियो है उसको कंपेयर कर तो देखिए 1970 से लेके ऑलमोस्ट 50 इयर्स के बाद में क्या सिचुएशन है। जो हमारा नेट सोन एरिया, यानी कि जैसे डॉक्टर राठौर भी बता रहे थे कि जो ज्यादा फर्टाइल एरिया है उसमें ज्यादा अर्बनाइजेशन होने लगा है ना। आपका पूरा गुड़गांव, आप नोएडा, जो सबसे फर्टाइल बेल्ट था, ये अर्बनाइजेशन या डोमेस्टिकेशन इसमें हम बोल सकते हैं, या हाउसिंग में ज्यादा काम आने लगा है, और एग्रीकल्चर जो है ज्यादा से ज्यादा मार्जिनल और कम फर्टाइल एरिया की तरफ शिफ्ट होने लगी है। ठीक है, सो नेट सोन एरिया ऑल्दो स्टिल रिमेन्स द सेम, हम अभी तक भी 140 से 142 मिलियन हेक्टेयर के बीच में ही है, लेकिन एग्रीकल्चर की जो लैंड है वो शिफ्ट हुई है टुवर्ड्स लेस प्रोडक्टिव एंड मार्जिनल एरियाज। ग्रॉस सोन एरिया में हमारे यहाँ पे निश्चित रूप से काफी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इरिगेटेड एरिया ऑलमोस्ट हम डबल आ गए हैं, नेट इरिगेटेड, और अगर ग्रॉस इरिगेटेड एरिया की बात करें तो हम करीब 90-95 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हमारा ग्रॉस इरिगेटेड एरिया,
लेकिन आप फर्टिलाइजर यूज की बात कीजिए, जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था, करीब ओनली हम बात कर रहे थे कि 2-2.5 मिलियन टन हमारा फर्टिलाइजर यूज था, तो अभी हमारा 30 से ऊपर भी है, करीब 31 या 32 मिलियन टन हम, जो 2020-22 का डेटा है, 21-22 का डेटा है, उसके हिसाब से हम इतना फर्टिलाइजर कंजम्पशन जो है हमारे यहाँ बढ़ा है। और उसी का ही रिस्पॉन्स है कि हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है 50 मिलियन हेक्टेयर से अब हम कहीं ना कहीं 300+ मिलियन हेक्टेयर जो है उत्पादन कर पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी इश्यूज हैं। अब आप ये देखिए कि आपकी जो फूड ग्रेन्स थे उसमें हमारा 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है ग्रीन, अब जब हम आजाद हुए 1947 से 2020 के टाइम पे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो 10 गुना हमने हमारा प्रोडक्शन बढ़ाया है। मिल्क के कंटेक्स में राठौर से भी बता रहे थे कि हम हाईएस्ट प्रोड्यूसर है और करीब 9 के फैक्टर, यानी कि 9 गुना हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, और फिश प्रोडक्शन में करीब 13। लेकिन इस सब जो हम जो स्वॉट एनालिसिस की बात कर रहे थे, इन सब स्ट्रेंथ्स के अलावा जो 2 पिक्चर्स मैंने राइट साइड में लगाई है, वो सी द पॉपुलेशन एंड सी द अर्बनाइजेशन। इसके कारण जो हमारे चैलेंजेस हैं, तो हम इस सारे फैक्टर्स को लेके हम कॉम्प्लेसेंट या संतुष्ट नहीं हो सकते। वी हैव टू कीप गोइंग। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने खत्म कर लिया और ये आपका हमेशा के लिए मिट गया, और हमारी जो ग्रोथ रेट है हमको इससे और बढ़ानी ही है। अगर 2025 की जो डिमांड की बात करें, तो राइस प्रोडक्शन में हमें करीब 30% जो इंक्रीज की जरूरत है, वीट के अंदर भी 30 to 35% है। डॉक्टर राठौर बता रहे थे कि हमारे पास अभी इनफ स्टॉक्स हैं, और बल्कि स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम। लेकिन वेरी सून, और अभी तक वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि कोई ऐसा फेमाइन या इस तरह का कोई नेचुरल कैलामिटी अभी हमारे पास में नहीं आई है। एक नेचुरल कैलामिटी जैसे अभी हमने बात की कोविड के टाइम पे, हमारे 80% जो लोग हैं, या मतलब 80 करोड़ लोगों को हम आउट ऑफ फ्री जो हम जो फूड प्रोडक्शन, जो फूड ग्रेन्स है या पल्सेस है, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एक नेचुरल कैलामिटी भी हमको शेक कर सकती है। हमारे पास बफर स्टॉक प्रेजेंट उसके लिए हो सकता है, मे बी 2 साल के लिए हम सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास सस्टेनेंस का मुश्किल है। दूसरा, पल्सेस के लिए हमारे को करीब इतना ज्यादा इन्हांसमेंट की जरूरत है, टोटल सीरियल्स और ऑयल सीड्स। ऑयल सीड के बारे में फिर भी इतनी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं। वी हैव सोर्सेज जहां से हम इंपोर्ट कर सकते हैं एडिबल ऑयल्स। लेकिन पल्सेस के कंटेक्स्ट में हम ही सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, हम ही सबसे बड़े कंज्यूमर है, तो वी डोंट हैव अ सोर्स आल्सो जहां से हम पल्सेस को इंपोर्ट करा पाए। ऑल्दो अभी भी हम 3 से 4 मिलियन टन पल्सेस इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल द चैलेंजेस आर ह्यूज, स्पेशली फॉर ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, इन दोनों ही कंटेक्स्ट में। अब जो ग्रोथ रेट हमको चाहिए, अब आप ये देखिए सीरियल्स में, पल्सेस में हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, ग्रोथ रेट कितना रहा है, और रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट कितना है। तो ऑयल सीड को रेड मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर हमको सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट की जरूरत है। जो एरिया है अभी भी हमारा 27 से 28 मिलियन हेक्टेयर ही है, और करीब 30 से 31 मिलियन टन ऑयल सीड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो है हम उसका तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चैलेंजेस हैं जिनको हमको मीट आउट करना है। अब भी वापस हम ग्रीन रिवॉल्यूशन पर आते हैं, और हम कहते हैं कि भी ग्रीन रिवॉल्यूशन 1997 और 2020 के आसपास जब हम देखें, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की यील्ड एनहांसमेंट की लिमिट इतनी ही थी। फिर हमने न्यू प्लांट टाइप को बनाया, जिसके अंदर हमारे जेनेटिक पोटेंशियल को इनहेंस किया, वाइडर जेनेटिक पोटेंशियल में वाइडर जेनेटिक बेस को हमने एक्सप्लोर किया। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ट्रेंड है, वो अभी भी इस न्यू प्लांट टाइप के साथ में भी मैच नहीं कर रहा। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का फोकस जहां पर था कि हमने एक लिमिटेड स्कोप में एक प्लांट को हमने बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया एंड वी प्रोड्यूस, और हमने हायर प्रोड्यूस किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमको एनवायरमेंट को ऑल्टर करने की जरूरत है, तभी हमारा ये जो रेड वाला जो ह्यूज गैप है, तभी वो मैच हो पाएगा, वो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ में हम कर पाएंगे। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने की थी, वो है फर्टिलाइजर यूज। शुरू में भी हमने बताया कि 2 से 3 मिलियन टन से अभी हम करीब 10 गुना यानी कि 31 मिलियन टन पर आ गए हैं। ये फूड ग्रेड, ये जो सबसे डार्क जो इस ग्राफ में पिक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज फूड ग्रेड प्रोडक्शन। लेकिन इसके कंटेक्स्ट में देखिए आप, जो नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन है 1950 से लेके करीब 2010 तक का ये डेटा है, ये बताता है कि नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर हमारे यहाँ बिल्कुल पीक इनहेंसमेंट है, और ऑलमोस्ट नाइट्रोजन और फूड ग्रेन प्रोडक्शन आपस में कोरिलेटेड रही है। लेकिन अगर आप पी और के की बात करें, यानी फास्फोरस और पोटेशियम, ये मैं सिर्फ बात कर रही हूँ 3 मेजर एलिमेंट्स के बारे में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में, इनका जो यूटिलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा है, या जिस प्रपोर्शन में फूड ग्रेन प्रोडक्शन या नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन बढ़ा है उस प्रपोर्शन में नहीं है। हम सब जानते हैं कि प्लांट के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। एक सिंपल उदाहरण आपके खाने से ये दूं
जैसे आपके लिए जो भोजन है, पौधों के लिए वो फर्टिलाइजर है। मैं आपको एक खाने में डबल मिर्ची डाल दूं तो कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हम सब जानते हैं कि 16 से 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं और उन सबको बैलेंस्ड फॉर्म में देना होता है। तो अगर आप नाइट्रोजन एक्सेस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं फायदे की जगह वो नुकसान कर रहा है, बाकी और जो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक है उसको वो हार्म करता है। तो सिर्फ नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन बढ़ा है, पी और के का यूटिलाइजेशन या फर्टिलाइजर फॉर्म में उतना ही कम है। तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी है। जैसे आपने सुना होगा कि पहले 50 किलो का यूरिया का कट्टा आता था, 45 किलो की 45 केजीज का है। उसका रीजन यही है कि फार्मर की टेंडेंसी है कि आपको येलोइंग दिखी खेत में या आपको इमीडिएट ग्रोथ चाहिए या मतलब हरा भरा खेत चाहिए तो आप नाइट्रोजन देंगे। तो हरा भरा तो होता है लेकिन आपको जो अपील करता है वो कीड़ों और बीमारियों को भी अट्रैक्ट करता है। तो जहां आप फायदा करना चाह रहे हैं उधर नुकसान होता है। नाइट्रोजन से सिर्फ आपका वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसमें रिप्रोडक्शन में या फिर या ग्रेन में कन्वर्ट हो। उसके लिए पौधे को सभी बैलेंस्ड जो न्यूट्रिशन है वो चाहिए। कहीं ना कहीं बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसलिए आजकल हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इन सब कारणों पे हमको कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। तो अब जैसे अगर आप वापस ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं, फिर हम 1966 की बात करते हैं, तो जहां हमारे पास 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देने पे इरिगेटेड एरियाज में 13 किलो हमारे को फूड ग्रेन मिलता था। लेकिन उसके कंपैरिजन में जैसे ही हम 21वीं सदी में आए तो उसका ये रिस्पॉन्स घटते घटते 3.7 और अभी करीब 2.5 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम एनपीके देने पर आपको जो शुरू में 14 किलो ग्रेन मिलता था उसका अब करीब हमको 2 से 2.5 किलो ही मिल पा रहा है। तो ये डिक्लाइनिंग जो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स है ये भी बहुत ही जाना है। हाँ, तो ये जो डिक्लाइनिंग फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स है ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और इसका मेन कारण ये है कि हमने हमारी मिट्टी की स्ट्रेंथ को कम कर दिया। ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट था वो टुवर्ड्स डिक्लाइन है। हम इंटेंसिव कल्टीवेशन लेने लगे, पहले हम एक फसल लेते थे फिर 2 लेने लगे, अभी 3 और यहाँ तक कि जहाँ एश्योर्ड इरिगेशन है वहां हम 4 फसलें भी लेते हैं। आपने रिले क्रॉपिंग के बारे में सुना होगा। तो सॉइल्स में कहीं पर भी फेलो या रेस्टिंग पीरियड नहीं है टू रीजेनरेट। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास में, जिसमें हम मेनली फोकस करते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो आपको जब मिट्टी से बहुत ज्यादा लेना है तो आपको इफ यू हैव टू पे बैक आल्सो, है ना, वापस भी करना होता है। और अगर ये नहीं किया तो गैप बढ़ता है, यानी कि मतलब अपटेक और जो सप्लाई है उसमें अगर गैप बढ़ता है तो धीरे धीरे मिट्टी की जो नेटिव मतलब उर्वरा शक्ति है, ये जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन होती है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। और ये देखिए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए अब ये इतने सारे सैंपल्स को एनालिसिस किया गया, मोर देन 1000। ये बहुत ही पुरानी स्टडी है और उसमें ये पता लगाया है कि ज्यादातर जो है लो जो है उसमें आया है कुछ मीडियम रेंज में, और बहुत ही जो सिर्फ आपका पोटेशियम है वो कहीं कहीं पर हाई रेंज में मिला। और वो भी आप क्योंकि डिक्लाइनिंग है और इंटेंसिव एरियाज जितने भी हैं वहां आपका अवेलेबल पोटेशियम भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और पी और के तो हमेशा से ही मतलब ये टुवर्ड्स डिक्लाइनिंग है। जो नाइट्रोजन था उसकी डेफिशिएंसी सबसे पहले मिली और धीरे धीरे अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी होने लगी है और उसी के कारण जो टोटल आपका फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स है वो कम होता जा रहा है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमने बात करें तो आप देखिए जितने भी सैंपल्स को एनालिसिस किया गया उसमें से मोर देन 40% सैंपल्स वर फाउंड डेफिशिएंट इन सल्फर, 50% करीब जिंक में डेफिशिएंट थे, बोरोन, मोलिब्डेनम। और इसीलिए आपने देखा होगा टेस्ट हैज गॉन आउट ऑफ आवर फूड। पहले के लोग बोलते थे कि खाने में बहुत टेस्ट है, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम ये होता है कि ये फाइनल प्रोड्यूस ऑफ द क्वालिटी जो है, जो फाइनल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हो सकता है कि टोटल प्रोडक्शन आपको उतना ही मिले लेकिन जो क्वालिटी है। और उसके बाद आजकल एक और है, शायद मैं कमिंग स्लाइड में डिस्कस भी करूंगी, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मिट्टी की हेल्थ, प्लांट की हेल्थ, एनिमल की हेल्थ और पूरे प्लैनेट की हेल्थ सेपरेबल नहीं है। मिट्टी हेल्थी होगी तभी प्लांट और एनिमल हेल्थी होगा, उसी से ही ह्यूमन हेल्थ है और उसी से ही प्लैनेट की हेल्थ भी गवर्न होती है। ये सल्फर सिर्फ पूरे इंडिया की बात करें तो जो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ,
उसमें भी इतने ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स को एनालिसिस किया गया एंड मोस्ट ऑफ देम वर फाउंड लो इन द अवेलेबल सल्फर। तो अभी सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम में ही हम देख रहे थे कि पी और के का कंजम्पशन बहुत कम है, ओनली नाइट्रोजन इज ऑन राइज एंड इंक्रीजिंग, सो व्हाट टू टॉक अबाउट सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं at farm level, village level, maybe district level or at the country level needs to be reoriented. उसमें हमको वापस देखना पड़ेगा। आजकल ड्रोन बेस्ड है, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे NBSS LUP एक इंस्टीट्यूट है जो पूरे इंडिया के अंदर मैपिंग करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, भोपाल से वो चलता है, वो देखता है कि पूरे कंट्री में कहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है। उन मैपिंग को करके हम पता लगा सकते हैं, हम उन पॉकेट्स को पता लगा सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये न्यूट्रिएंट्स डेफिसिट है एंड हाउ टू मैनेज देम। तो अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे सब्सिडी है फॉर फर्टिलाइजर्स, देयर इज लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई अबाउट अवेलेबिलिटी आल्सो, DAP मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो हम एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम है, दूसरा आप देखिए इनकी एफिशिएंसी कितनी है। नाइट्रोजन की हार्डली अंडर बेस्ट कंडीशंस 50% से भी ऊपर नहीं जाती, यानी कि जो आप यूरिया का कट्टा 45 किलो का डाल रहे हो उसमें से सिर्फ 22.5 ही, वो भी अंडर बेस्ट कंडीशंस आपको मिल रहा है, बाकी वेस्ट हो रहा है। तो वेस्ट हो रहा है जिसके अंदर या तो ये गैस बना है, डॉक्टर साहब ने बताया था कि नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में, या तो ये ग्रीन हाउस गैस या क्लाइमेट जो उसमें है क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, या लीच डाउन होके वाटर बॉडीज के अंदर खराब करेगा। यूट्रोफिकेशन आप सबने सुना होगा, उसके कारण एल्गल ब्लूम्स होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स है, या फिर ये किसी न किसी तरह से वेस्ट होगा। फास्फोरस की डेफिशिएंसी हमें सिर्फ 15 से 20%, पोटेशियम की भी है हायर डेफिशिएंसी, सल्फर और एंड इमेजिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप जितना भी डाल दो सिर्फ 1 या 2% ही है, बाकी फिक्सेशन है। अब इस फिक्सेशन से कैसे मिले, उसके लिए हमको कोई ना कोई ऑर्गेनिक सोर्स पे जाना होता है। ऑर्गेनिक सोर्स से माइक्रोबियल एक्टिविटी इनहांस होती है, और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग्स को इनहांस करती है, जिससे ये प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में आता है। तो आपको कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिया और आपका काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर अवेलेबिलिटी आल्सो। अगर मैं कहूँ कि आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन है इन ह्यूमन बींग्स, तो अगर आपको डॉक्टर ने विटामिन डी के कैप्सूल्स दे भी दिए, लेकिन उससे आपकी बॉडी की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, जब तक आप वो इंश्योर नहीं करते, जब तक आपका वो जो कैप्सूल फॉर्म में विटामिन डी लेना भी यूजलेस है। तो बताता है डॉक्टर की ठीक है, लेकिन आप कैप्सूल हो, लेकिन धूप में बैठो, गो फॉर सम नेचुरल सोर्सेज, ये एक्सरसाइज करो। So you need a total solution and you have to work for in an integrated management mode की आपको सभी चीजों को आपस में इंटीग्रेट करके इनकी अवेलेबिलिटी को इनहांस करना होगा। दूसरा हम बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट माइनिंग की। अब आप ये देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हम अभी खूब बात कर रहे हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, लेकिन इतना सारा डेटा और एनालिसिस सिर्फ जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है उन्हीं पर ही हुआ है। और अभी देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये ग्रॉस बैलेंस है, ये आपका एडिशन है, ये रिमूवल है और ये बैलेंस है। तो आपका जो नेट बैलेंस है इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, ठीक है। ये ग्रॉस बैलेंस है और उसके अलावा ये नेट बैलेंस है, तो ये ऑलमोस्ट फॉर ऑल द न्यूट्रिएंट इट हैज बीन नेगेटिव। और अगर टोटल की बात करें तो आप समझिए ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमारा 8 से 10 मिलियन टन्स का नेगेटिव बैलेंस है इन एग्रीकल्चरल एरिया। सो कहीं ना कहीं वी नीड टू फोकस। और सॉइल का भी एक कैपेसिटी होता है ना, देयर इज एन इलास्टिसिटी, हम उसको एक एक्सटेंट तक खींच सकते हैं, आफ्टर दैट द इलास्टिसिटी इज लॉस्ट। तो मे बी बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही बैरन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इट इज द हाई टाइम वेयर वी नीड टू फोकस कि कहाँ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें, कहाँ क्रॉप्स का सिलेक्शन कैसा हो, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी पर कैसे फोकस किया जाए। तो ये एक ना एक ग्लोबल नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो ये जो है ये वर्ल्ड का एवरेज है। और ये जो पर्पल कलर है ये बता रहे हैं कि इसमें दिस इज, ये हम इंडिया, जैसे ये हम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है, वी आर समवेयर हियर ना 20 से 40% के बीच में। तो एट वन साइड वी आर सेइंग कि हम बहुत न्यूट्रिएंट डेफिसिट है, हमारे पास सॉइल्स में नाइट्रोजन की कमी है, एंड एट द सेम टाइम हम डेफिशिएंसी मतलब उसकी अवेलेबिलिटी या एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे। एंड वी वर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो नाइट्रोजन था, फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट जो था वो आयरन था, और धीरे धीरे इन सभी न्यूट्रिएंट्स की कमी बाय 2020 वी हैव सीन कि बहुत सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी होने लगी है। और ये जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन
न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और उसमें गैप की हम बात कर रहे थे, तो इस सब के बाद में भी हम करीब 8 से 10 मिलियन टन जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है उसमें डेफिसिट है। अब बहुत ही बेसिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही हमको पढ़ाया जाता है कि एनपीके रेशो, जो आइडियल एनपीके रेशो है वो 4:2:1 है। लेकिन अगर आप देखिए जो मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, जहां पर सारा दिन के ऊपर हमारा फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है, टॉक अबाउट पंजाब एंड हरियाणा, हाउ स्क्यूड रेशो दैट इज। आप सोचिए 48-14:1, जो 4:2:1 होना चाहिए था, वेरी स्क्यूड रेशो इज देयर। तो इतने स्क्यूड रेशो में अगर आप सोचो कि सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड द जो सिचुएशन है ये बहुत ही अलार्मिंग है, वेयर वी हैव टू टेक इमीडिएट एक्शंस। ये हम एक वन हेल्थ कॉन्सेप्ट की, मतलब व्हाई शुड बी बॉदर कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो रही है या फुल पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, या किसी वैरायटी का पोटेंशियल मान लो 8 या मान लो 5 टन है और हम सिर्फ 3 टन ही ले पा रहे हैं। सो व्हाई शुड बी बॉदर? हमारे लिए ये कंसर्न क्यों होना चाहिए? हमारे लिए कंसर्न इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर सॉइल हेल्दी नहीं है तो हम भी किसी भी कंटेक्स्ट में या किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि सॉइल हेल्थ के ऊपर ही प्लांट हेल्थ डिपेंड करती है, प्लांट हेल्थ के ऊपर एनिमल हेल्थ डिपेंड करती है, और इन दोनों की हेल्थ पे ह्यूमन हेल्थ डिपेंड करती है। और ये सब एनवायरमेंट हेल्थ और प्लांट हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी से कि the health of plants is not separable from environment. So in totality we have to see कि और हमको बहुत ही बेसिक और ग्रास रूट से शुरू करने का। इफ यू मेक योर सॉइल हेल्दी, पहले के लोग क्यों इतने हेल्दी होते थे, क्यों इतना रेजिस्टेंस था उनमें, है ना? अभी बीपी, शुगर, मे बी विजन, लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, ये सब क्यों होता है? बिकॉज सॉइल से माइक्रोन्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट हो गए और हम सप्लाई कर नहीं रहे। तो जो ताकत, सॉइल की ताकत जो प्लांट के थ्रू ह्यूमन बींग्स में आती थी, दैट हैज बीन एग्जॉस्टेड। सो कहीं ना कहीं वी हैव टू फोकस ऑन दैट। नाउ अगर हम बात करें उसकी एमिशंस की, तो आजकल एनवायरनमेंट पर भी ह्यूमन हेल्थ के बराबर ही फोकस किया जा रहा है। हाँ जी। तो जो फर्टिलाइजर्स से जो हम बोल रहे थे कि कितना सारा एमिशन भी हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि हमारी एफिशिएंसी 30 to 40% है। तो ये जो आप डार्क ग्रीन पैचेस देख रहे हैं ना, वहां पे एक्सेस नाइट्रोजन एप्लीकेशन है। तो आप एंटायर ऑलमोस्ट पूरे इसमें हम वी आर नोवेयर डेफिसिट इन अप्लाइंग एंड वी आर पुटिंग एक्सेस ऑफ दिस फर्टिलाइजर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कर रहा है। सो इंस्टेड ऑफ गुड, मतलब अच्छे की जगह ये और बुराई कर रहा है। हमारे जो दो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे हम इंडिया और यूएस की बात करें, यूएस तो बहुत ही डेवलप्ड नेशन है, चाइना हमारा कंटेम्परेरी वी कैन से इन डेवलपमेंट है। तो आप ही देखिए, यूनाइटेड स्टेट ने अपना फर्टिलाइजर कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन एकदम स्टेबलाइज कर दिया है। ठीक है, चाइना का भी उसने लेवल ऑफ करना शुरू कर दिया है। वी आर स्टिल ऑन रेस, हम ऑलमोस्ट 5% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से फर्टिलाइजर कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका ये मतलब नहीं कि यूनाइटेड स्टेट ने नाइट्रोजन कंजम्पशन बंद कर दिया, इट इज ग्रोइंग मोर एंड मोर एफिशिएंट। डॉक्टर राठौर डिस्कस्ड अबाउट एनहांसिंग न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, जिसके अंदर ही टॉक्ड अबाउट एलसीसी, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम रियल टाइम नाइट्रोजन मैनेजमेंट कहते हैं। हमारे पास मॉडल्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्टिकल सेंसर्स हैं। आपने ग्रीन सीकर के बारे में सुना होगा, आपने क्रॉप सेंसर्स के बारे में सुना होगा। इन सभी मेथड्स को यूज करते हुए नाउ दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एफिशिएंट। सो विद गिवन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, उतने ही फर्टिलाइजर से ये ज्यादा एरिया को फर्टिलाइजर्स दे पा रहे हैं। एमिशन की जब भी हम बात करते हैं, तो अब आप ये देखिए कि आपको बहुत सारी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को डिफेंड करना होता है। डॉक्टर साहब ने बताया COP27 में इंडिया भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। इंडिया को ये बताना पड़ता है कि ठीक है, आपके पास हाईएस्ट कल्टिवेबल एरिया है, आपके यहाँ फर्टिलाइजर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, व्हाट यू आर डूइंग टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कंट्री की पॉलिसीज को डिफेंड करना पड़ता है। डॉक्टर पाठक जो डीजी है ICAR की, उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। उनको ये बताया गया कि भाई आपके यहाँ से तो इतना ज्यादा 30% आपका एफिशिएंसी है, आपका करीब 40 मिलियन जो हेक्टेयर है एरिया अंडर राइस है, पर हेक्टेयर इतना एमिशन है, तो उसको डिवाइड करो इनटू 40 मिलियन हेक्टेयर, तो आप इतना ज्यादा एमिट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपकी इतनी सारी पेनल्टी लगेगी, या उसके ऊपर आपको मे बी दे विल रेस्ट्रिक्ट यू कि आप सिर्फ इतने एरिया पर ही राइस ग्रो करो। तो फ्रॉम हिज स्टडीज व्हाट ही हैज सेड, अब आप देखिए ऊपर वाला जो ग्रीन ग्राफ है वो ये बता रहे हैं 1970 से 2010 तक ये हमारा एमिशन है। ठीक है, तो हमारे एमिशन बढ़ रहे हैं,
तो क्योंकि हमारा फर्टिलाइजर कंजम्पशन बढ़ रहा है, हमने कहा हम 2 से अभी करीब 30 मिलियन टन पे आ गए हैं, लेकिन आप देखिए कि एमिशन पर टन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, आप ये देखिए येलो वाले ग्राफ में एमिशन पर हेक्टेयर इज ऑन राइज, बट एमिशन पर टन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन वी आर डिक्लाइनिंग, क्योंकि अभी हम उस लिमिटेड एरिया पे फूड प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, एंड इट सेज कि इंडिया एमिट्स 5% ऑफ ग्लोबल जीएचजी, ठीक है। और इंडियन एग्रीकल्चर को मेन कल्प्रेट, डॉक्टर साहब ने लाइव स्टॉक की बात की, वी हैव द हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, और रूमिनेटिंग एनिमल्स में एक एंटेरिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस के कारण बहुत सारा मिथेन एमिशन होता है। तो ये सब चीजों को हमको कहीं ना कहीं लिमिट करने की जरूरत है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी से साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, गिव द न्यूट्रिएंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उतना दो, जब चाहिए उतना दो, और किस क्रॉप के लिए कितना है वो सब भी स्पेसिफिक है। जो 4 आपकी आर स्टीवर्डशिप मतलब मैनेजमेंट, तो आपकी 4R मैनेजमेंट क्या है? सोर्स, रेट, टाइम एंड प्लेस। तो सोर्स क्या है? एंटायर आपको बैलेंस्ड एप्लीकेशन से देना है, सॉइल प्रॉपर्टीज के हिसाब से देना है, जो सोर्स शुड बी गुड। हम बोलते हैं कि अमोनिक मतलब नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स की जगह अमोनिकल फर्टिलाइजर्स से लॉसेस कम होते हैं, सो वी कैन गो फॉर दैट सोर्स। हमने बात की डीएपी की जगह, तो डीएपी की जगह वी कैन गो फॉर एसएसपी, जिसके अंदर वी हैव multiple nutrient sources also. Then rate is very very important. Time of application is also very important, जिसको हम बोलते हैं आजकल रियल टाइम नाइट्रोजन मैनेजमेंट। डॉक्टर साहब ने एलसीसी की बात की, तो उसमें आपको रियल टाइम मतलब आज जरूरत है या नहीं, दैट आल्सो यू कैन आइडेंटिफाई एंड देन यू कैन गिव। सो एलसीसी के साथ हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है, हमने भी कुछ यहाँ एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। इनिशियल 1 और 2 ईयर में यू कैन रिड्यूस द रिक्वायरमेंट इवन अप टू हाफ, मतलब आप आधा भी कर सकते हो। मे बी लेटर ऑन थोड़ा सा नाइट्रोजन का इस तरह है कि स्टेबल नहीं होता, सॉइल में डजंट स्टे, तो धीरे धीरे रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको क्या आ रही है सर? हाँ जी, थोड़ा लाउडली बोलती हूँ मैं, मे बी आप ही के साथ में वॉइस थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ रही इशू है। मैम। Ma'am, your voice is clear. You can continue, ma'am. I think the Okay, problem I is on think the other side. Yes, ma'am. he has मतलब specific issues. Anyway, Yes. so and of course the place also, है ना? So these are the 4R stewardship or 4R nutrient management which need to be looked after. ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम बताते हैं कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन कभी भी किसी भी इसके लिए एक ब्लैंकेट एप्लीकेशन नहीं हो सकती है ना, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। सो एसएसएनएम इज यूजफुल एज इट इंक्रीजेस द yield, एट द सेम टाइम इट इंप्रूव्स न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बाय 30 to 40%। और हमारे पास इसके जो टूल्स हैं जिसको हम डायनामिकली, जिससे या रियल टाइम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में वी हैव एलसीसी, ग्रीन सीकर की हमने बात की। ग्रीन सीकर में कुछ स्टैंडर्ड्स बने, ग्रीन सीकर हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर राइस, व्हीट एंड मीज। इन तीनों ही उसके लिए भी हमारे पास एल्गोरिथम्स होती हैं, उससे आप कर सकते हैं। देन वी हैव न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट आल्सो। न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट भी एक आईपीएनआई इंस्टीट्यूट है, नाउ इट हैज बीन मॉडिफाइड। तो उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है थ्रू आउट द कंट्री, दे हैव कंडक्टेड मोर देन 20,000 एक्सपेरिमेंट्स, जिसके बेसिस पे उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर रखा है हर जोन में। आप अपने टारगेट क्रॉप करके, जैसे आपका मान लीजिए सपोज इन मेज यू वांट टू गो फॉर 8 टन्स ग्रेन प्रोडक्शन, 8 टन के लिए आपकी सॉइल में कितना है, आप कितने इनपुट्स दे सकते हैं, उसके बेसिस पे ना केवल पूरा नाइट्रोजन या और एनपीके तीनों का अमाउंट, बल्कि शेड्यूलिंग भी वो सजेस्ट करते हैं न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट। सो इट्स अ सॉफ्टवेयर। उसके अलावा हमारे पास कई सारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जिसके बेसिस पे भी हम स्पेसिफिकली साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की उसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। सो फिर विद राइट टाइम वी सिंक्रोनाइज द रिक्वायरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द crop. Then LCC guided, इसके अंदर भी 2 अप्रोचेस हैं, वन इज फिक्स टाइम अप्रोच एंड अनदर इज रियल टाइम अप्रोच। फिक्स टाइम अप्रोच जब होती है जब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड जो इरिगेशन हमको देनी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो एप्लीकेशन है दैट शुड बी ऑन द बेसिस, मतलब इरिगेशन के 5 to 7 डेज के बाद में देनी होती है। सो फॉर वीट वी गो फॉर फिक्स टाइम अप्रोचेस, एंड फॉर रियल टाइम अप्रोच जैसे कि आपका राइस है, तो राइस में भी गो फॉर फ्रीक्वेंट इरिगेशन। सो उसमें हम रियल टाइम अप्रोच, इवन एवरी डे इज काउंटेड। हो सकता है आज रिक्वायरमेंट हो तो हम कल नाइट्रोजन दे सकते हैं अराउंड द इरिगेशन। सो नाउ देयर इज लॉट ऑफ hue and cry, or maybe the buzzword is conservation agriculture. So conservation agriculture के अंदर हम शुरू से ही इस तरह के मैनेजमेंट अप्रोचेस होती हैं, जिसमें हम न्यूट्रिएंट कंजर्व करते हैं, ऑल द रिसोर्सेज बी इट वाटर और न्यूट्रिएंट, उसको हम कंजर्व करते हैं। So इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। वी गो फॉर नो और मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ द सॉइल, then we have to maintain 1/3 of the entire area under soil cover.
इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि व्हाटएवर आप जो प्रोड्यूस करते हो उसका 1/3 अप्लाई करना है या क्या। तो जो आपका जितना भी जो एरिया है अंडर कल्टीवेशन, उसका 1/3 जो है दैट शुड बी अंडर द कवर। इट कुड बी लाइव मल्च और इट कुड बी द कवर क्रॉप। जैसे अगर लाइव मल्च का मतलब आपने कोई क्रॉप ही ग्रो कर रखी है, यू डोंट हैव टू लीव योर फील्ड बैरन। और थर्ड है डाइवर्सिफाइड एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉपिंग सिस्टम यू हैव टू अडॉप्ट। इस सब के फायदे क्या है? इंक्रीज इन सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज द हार्ट ऑफ योर सॉइल। अगर आपका हार्ट अच्छा होगा तो आपकी सभी चीजें अच्छी होगी, आपका ब्लड पंपिंग अच्छी होगी, ऑक्सीजन सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो सॉइल आपका जो जितना भी आप इनपुट बाहर से डाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिव नहीं होती है। देन डिक्रीज इन एरोजन बिकॉज ऑफ कवर, आपकी सॉइल लूज नहीं होती। ये सभी बेनिफिट्स हैं। एंड डिक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर ओवर द ईयर। जैसे जैसे आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं, शुरू के 2 या 3 सिस्टम्स में आपको जेस्टेशन पीरियड रहता है, उसके बाद और एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर आप और हाउ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, देखिए जीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज आप अगर आप अपनाते हो तो यू कैन सेव 75% फ्यूल कंजम्पशन। और आप ये कैसे? मतलब 10 ट्रैक्टर पासेस जो है दे विल सेव 80 लीटर्स ऑफ फ्यूल। अगर आप एक ट्रैक्टर पास पर हेक्टेयर की बात करें, और अगर इस पूरे जीरो टिलेज को इवन अगर हम सिर्फ 0.5 बिलियन हेक्टेयर में करते हैं, देन वी आर एबल टू दिस we can say 1.3 million tons equivalent of CO2 getting into Ma'am? the atmosphere. हाँ जी, मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है आपकी। अभी अभी नो मैम। हो रही है मैम। मैम हो रही है, मैम हो रही। अच्छा, तो मे बी इट इज मेरे वाले में भी नहीं हो रही। issue with, नहीं हो रही है मैम। I mean I don't know what to do if it नहीं is हो- visible to some of you, तब तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए भी कुछ इसको सेटल करना। Ma'am, you can continue. Okay, You can continue, ma'am. Yes, you can continue. so is there a limitation of time, ma'am? When do I need to finish? No, ma'am. Okay, The Actually, session is already very 7 informative, ma'am. You can हाँ, continue, ma'am. ओके ओके ओके। सो अब इसमें कई बार जैसे जीरो टिलेज को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। लाइक फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत अपॉर्चुनिस्टिक अडॉप्शन है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि राइस हार्वेस्टिंग के बाद में व्हीट की ग्रो करने के लिए टाइम या टर्नओवर पीरियड बहुत कम होता है, तो दे गो फॉर जीरो टिलेज। लेकिन अब उसके बाद जब उनके वो लोग व्हीट हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में राइस कल्टीवेशन के लिए दे हैव अ विंडो पीरियड ऑफ अराउंड 2 to 2.5 months और सो। उस समय वो क्या करते हैं, राइस में पडलिंग कर देते हैं। तो क्या हुआ, जो जीरो टिलेज व्हीट के अंदर जो रेजिड्यू था, और क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीरियल्स के जो रेजिड्यू है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब आपने उसके बाद पानी भर के उसमें फ्लडिंग कर दिया। तो अगर सिंपल आप उसको खेत से हटा देते या जला देते तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लेकिन अगर आपने उसमें पडलिंग के लिए पानी भर दिया और उसमें रेजिड्यू भी है, तो मिथेन निकलेगा, ठीक है। तो मिथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम बोलते हैं, वो CO2 से 14 गुना ज्यादा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्शियल अडॉप्शन नहीं होना चाहिए, कि आप किसी एक क्रॉप में जीरो टिलेज कर दें अपनी कन्वीनियंस से, और नेक्स्ट क्रॉप में आप पडलिंग या टिलेज कर दें। सो इफ इट इज CA, अगर वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है तो वो कंप्लीट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होना चाहिए। हम डबल जीरो टिलेज और ट्रिपल जीरो टिलेज की बात करते हैं, जिसपे दोनों क्रॉप्स को जीरो टिलेज, या जैसे आप राइस, व्हीट, मूंग बीन एक सिस्टम है, आप उन तीनों को ही जीरो टिलेज करें, रेजिड्यू मेंटेन रखें, तभी वो एक टोटलिटी में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स देगा। सो पार्शियल अडॉप्शन ऑफ CA शुड बी डिस्करेज्ड। अब आप लीफ कलर चार्ट की हम बात करते हैं, उसके साथ हम नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स को भी प्रमोट करते हैं। उसमें जैसे डाइसैनामाइड है, नीम केक है, नीम ऑयल है, इन सभी का देखिए मिटिगेटिंग पोटेंशियल इज वेरी ह्यूज, लाइक 13 to 40% जो मिटिगेशन है। तो दैट इज, इसलिए हम स्लो नाइट्रिफिकेशन के कारण उन सभी को हम ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये एक कंपैरिजन है कि अगर आप मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, आपने डायरेक्ट सीडेड राइस के बारे में सुना होगा। तो अगर आप डायरेक्ट सीडेड राइस लेते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों के उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, लेकिन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही डायरेक्ट सीडेड राइस के केस में बहुत ही कम रिलीज होते हैं। और इन टोटलिटी द टोटल GHG emission from direct seeded rice is far less as compared to the transplanted rice.
ओके तो इसलिए हम आजकल क्लाइमेट स्मार्ट विलेज या क्लाइमेट स्मार्ट फार्म की बात करते हैं, जिसपे कहीं कोई एक चीज को फोकस नहीं करना होता है। आपके पास यू शुड हैव योर विलेज और योर फार्म शुड बी वेदर स्मार्ट, जिसमें आप फोरकास्टिंग के बारे में आपको अलर्ट रहना होता है। आजकल मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म जो फोरकास्ट है वो बहुत ही सही प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट मॉडल्स एंड ये सब, तो ये सब आपको देखना है। देन योर विलेज एंड फार्म शुड बी वाटर स्मार्ट, जिसमें आप ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस या उन सब पे फोकस करें। कार्बन स्मार्ट में आपको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को फॉलो करना है, यू हैव टू गो फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक प्रॉपर मैनेजमेंट, नाइट्रोजन स्मार्ट, एनर्जी स्मार्ट एंड फाइनली नॉलेज स्मार्ट। तो अभी एफपीओस की बात है, दे हैव टू कम इन ग्रुप्स, आप लोगों को मिलकर, जैसे कुछ एक फार्मर को एक विलेज को फोकस करके यू फोकस द प्रोडक्ट वेयर यू वांट टू प्रोड्यूस, और उसके बाद में आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा वेयर यू कैन सेल देम आल्सो। तो हम ऑर्गेनिक कार्बन की जहाँ पे बात कर रहे थे, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो आप ये देखिए कि ये पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो है, और ये जो कार्बन स्टॉक्स है वी आर टुवर्ड्स डिक्लाइनिंग। अगर आप इंडिया का पोजीशन देखो तो ये ज्यादातर ओल्ड एरियाज में, जहाँ जो रेट ऑफ डीजनरेशन या रेट ऑफ हम बोलते हैं कि मिनरलाइजेशन इज वेरी स्लो, वहां पे स्टॉक्स अच्छे हैं। लेकिन जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जो इक्वेटर के पास में है, वहां पे कार्बन स्टॉक्स ऑलरेडी, बस 10 मिनट, तो कार्बन स्टॉक्स जो है ऑलरेडी टुवर्ड्स डिक्लाइन है। तो यहाँ पे हमको किन चीजों पे फोकस करना है, क्विकली हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन की जहां हम बात करते हैं तो देर इज फिगर, आप देखिए नीचे, तो अगर सॉइल इज टू नाइट्रोजन का रेशो, मतलब ऑर्गेनिक कार्बन अगर 12 है तो आपको उसके अंदर नाइट्रोजन भी आपको 100 टाइम्स ऑफ सीक्वेस्टर करेगा, ठीक है। और अगर कार्बन और फास्फोरस में 200 टाइम्स फास्फोरस भी सीक्वेस्टर करेगा, और 500 टाइम्स सल्फर भी करेगा। तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज से सारे ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल्स इतनी फास्ट होती हैं कि हमको नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और सल्फर के अंदर भी स्टेबलाइजेशन में हेल्प मिलती है। एक जो दूसरा सबसे बड़ा नेग्लेक्टेड पार्ट है जिसमें हम पराली को जलाने की बात करते हैं, दैट इज क्रॉप रेजिड्यू। हमारे यहाँ पे करीब 550 मिलियन टन तक जो रेजिड्यू प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम ऑफ दैट इज फ्रॉम सीरियल्स, और बाकी सबका भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो ज्यादातर हम इग्नोर कर देते हैं और ज्यादातर उसको जला दिया जाता है। बट यू सी द कॉम्पिटिटिव यूजेस, आप इसको लाइफ स्टॉक फीड या मतलब बेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, थैचिंग, कंपोस्ट मेकिंग, डोमेस्टिक फ्यूल, और उस सब के लिए बायोफ्यूल, मतलब ये इतने सारे ऑप्शंस हैं। एंड द लीस्ट ऑप्शन और द लीस्ट ऑप्शन विच यू शुड गो फॉर इज बर्निंग। तो अब लेकिन इनका मैनेजमेंट बहुत ही ट्रबलसम होता है। इट इज इजी फॉर अ फार्मर, है ना, 1 रुपए की माचिस से वो पूरा खेत जला देता है रेजिड्यू, और यहाँ हम कहेंगे कि आप उसको इकट्ठा करो, एक जगह पे रखो, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, उसके बाद उसको आप एज अ मल्च यूज करो। तो लेकिन जो एस्टिमेट्स हैं वो ये बताते हैं कि क्रॉप रेजिड्यूज बर्न इन इंडिया आर स्टिल वेरी हाई, और पिछले साल के कंपैरिजन में इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी इस बार भी बर्निंग पिछले कंपैरिजन में ज्यादा हुई। सो ये सब पे हमको फोकस करने की जरूरत है। एंड हाउ डू वी डू दैट? बर्निंग कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्म, मतलब आपकी सॉइल की जो टेम्परेचर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जो हेल्दी माइक्रोब्स हैं वो उनकी इट कॉजेज डेथ टू दोज। और ये देखिए, ये पर हेक्टेयर पैडी स्ट्रॉक का इतना ज्यादा, उसके अंदर जो 1 हेक्टेयर पे पैडी स्ट्रॉ बनता है उसमें इतना सारा इतना अच्छा न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन है। स्टबल बर्निंग से इतना सब लॉस होता है, और अगर उसके अंदर ये सारे कर दिया जाए तो इसमें इतना पार्टिकुलेट मैटर और ये सारे इतने हार्मफुल जो पोल्यूटेंट्स है वो क्रिएट होते हैं, जो रिलीज होते हैं, जो एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल है अपार्ट फ्रॉम द नेट। सो अब इसके अंदर सबसे जो फार्मर जो अपनी कंप्लेंट बताता है वो ये कि मैडम टाइमली डिकम्पोज नहीं होता। तो अभी हमारे पास एक्सेलरेटेड कंपोस्टिंग का एक टेक्निक है जिसके अंदर पूसा डिकम्पोजर के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सिंपली देयर इज अ पैकेट फॉर 4 कैप्सूल्स एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर। इससे आपको 25 लीटर्स का जो सोल्यूशन बना के एक उसमें एकड़ में आपको स्प्रे करना है, और विद इन 15 to 20 डेज 75% जो पराली है वो आपकी गल जाती है। फार्मर्स की रिक्वेस्ट पे कैप्सूल की जगह अभी पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, और यूपीएल जो कंपनी है उसके साथ में पूसा का कोलैबोरेशन है, और दे हैव टेकन इट ऑन अ बिग वे टू द फार्मर्स फील्ड। तो ये बहुत सारे इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, और ये पूसा डिकम्पोजर हमारे ही इंस्टीट्यूट में माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन से अवेलेबल है। किसी को फार्मर्स फील्ड के लिए चाहिए, जैसे अभी तो इस सीजन के लिए हम थोड़ा सा लेट है, राइस की हार्वेस्टिंग के बाद वीट की सोइंग के लिए इस पूरे जो आपको रेजिड्यू को अगर यूटिलाइज करना है फॉर एनहांसिंग द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन और न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, दैट कैन बी इजीली यूज्ड। उसके अलावा अगर रेजिड्यू रखते है, आप डिकम्पोज भी नहीं कर पा रहे, तो आजकल बहुत सारे मशीन्स और अटैचमेंट्स हैं
जिनके बेसिस पे हम इवन 8 टन्स ऑफ जो आपका रेजिड्यू है उसके अंदर भी बहुत ही सक्सेसफुल सोइंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मैकेनाइजेशन चाहिए एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल। तो ये सब स्मॉल फार्मर्स के लिए है, और कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जो विच यू कैन रन बाय हैंड आल्सो। तो जो स्मॉल फार्मर्स की जो या जो मार्जिनल फार्मर्स की डॉक्टर राठौर भी बात कर रहे थे कि देयर नंबर इज ऑन इंक्रीज, दैट कैन बी आल्सो मैनेज्ड। Now, one more field which has been totally ignored is the use of biofertilizers. So we have a long list of biofertilizers जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग है, इसमें भी फ्री लिविंग सिम्बायोटिक एसोसिएटिव तीनों है, पी सॉल्युबलाइजर्स है बैक्टीरिया फंगस दोनों के लिए, पी मोबिलाइजिंग भी है। हमने कहा था कि बहुत सारे एफिशिएंसी बहुत कम है। अगर आप नाइट्रोजन तो फिक्स नहीं होता है सॉइल में, फास्फोरस पोटेशियम और सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉइल में फिक्स भी होते हैं। So we have clay complex in the soil where these nutrients get fixed. तो उनको कैसे रिलीज किया जाए उसके लिए बायोफर्टिलाइजर्स आर बेस्ट, तो वो हम कर सकते हैं। देन वी हैव डिफरेंट स्कोप, वी हैव स्कोप ऑफ एनहांसिंग द न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। अगर आप स्प्लिट डोज करते हैं सिंगल डोज में, दैट कैन इनहांस। पी और के लिए आप फरो प्लेसमेंट कीजिए, ब्रॉडकास्टिंग मत कीजिए। ब्रॉडकास्टिंग की कंपैरिजन में फरो प्लेसमेंट से इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और यूरिया के लिए भी जहां हम एक तरफ नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं, उधर ही यूरिया सुपर ग्रैन्यूल्स भी बहुत पॉपुलर है, जिससे भी उनकी, और हमने इसमें डीनाइट्रिफिकेटर्स की भी बात की, जिसके कारण जो नाइट्रोजन जो रिलीज पैटर्न है वो स्लो हो जाता है, and we also go for slow release of nitrogen. Again, one more area which has been picking up a lot is nanotechnology. Nano यूरिया की भी हमने बात की, so they have a higher penetration efficiency. तो जो यूरिया की हमारे यहाँ जो IRI में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो बताते हैं कि वीट के कंपैरिजन में, वीट में आप 25% नाइट्रोजन की डिमांड को कम कर सकते हैं थ्रू प्रिल्ड यूरिया आफ्टर स्प्रेइंग 2 नैनो यूरिया स्प्रेज, एंड फॉर मस्टर्ड इवन वी कैन गो अप टू 50% रिडक्शन इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूरिया। तो ये इसमें कर सकते हैं। तो ये किसने एडवोकेट किया ये सब के बारे में, मैं आपका जो प्रेजेंटेशन है दैट आई कैन शेयर विद यू। तो नैनो फर्टिलाइजर से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नैनो यूरिया इज कमिंग अप इन अ बिग वे। उसके अलावा हमने जिंक और नैनो डीएपी ये सब भी पॉपुलर है, और इनकी सिर्फ टोटल कॉस्ट नहीं देखना चाहिए। दे से एंड दे क्लेम दैट 1 बॉटल ऑफ नैनो यूरिया कैन रिप्लेस 1 टॉप ड्रेसिंग। तो अब आप ये समझिए कि एक बॉटल को कैरी करने में कितना टाइम लगता है। सो हम उसको बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका कॉस्ट कम हुआ, हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने का प्रोसेस के अंदर एग्जॉस्टिव नहीं होता, वो कम हुआ। सो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट यील्ड बेनिफिट्स, ये सारे एडवांटेजेस भी इसमें बहुत सारे देखे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अ गुड efficiency for binding in the soil and in the plant, which enhances the overall productivity. ये अलग अलग नैनो फर्टिलाइजर्स हैं, इनके इसमें क्या है और इनके कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में नैनो फर्टिलाइजर से कौन कौन से बेनिफिट्स हैं इसके अंदर भी हम देख सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके कई सारे तरीके हैं जिसके बेसिस पे हम इनको अप्लाई करते हैं। सो वी हैव ए माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस्ड, देन वी हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड वी हैव बायोफर्टिलाइजर बेस्ड नैनो फर्टिलाइजर्स आल्सो। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो अगर आप लोगों में से कोई रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से पिकअप करना चाहें तो दे हैव अ लॉट ऑफ फ्यूचर इन द कमिंग टाइम। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि हाउ नैनो फर्टिलाइजर इज डूइंग वेरी वेल फॉर द यील्ड एनहांसमेंट इन वेरियस क्रॉप्स। सो नैनो पार्टिकल्स और इनके इफेक्ट के ऊपर खूब सारा स्टडीज हुई है, and this is how their uptake is being governed, and और उसके बाद ये कैसे soil के through plant mechanism में आते हैं and they enhances the yield. So I think that is all I wanted to present for today. If you have some question to ask or maybe Okay, the session is open for question answer. Yeah. Please ask one by one. वन जनरल क्वेश्चन भाई। sure, please. लेगुमिनस जो क्रॉप होती है मैम, उसमें अगर हम कोई फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है कि घटता है? हाँ, इसके एक्चुअली अब जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है ना, तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं अगर आपको बहुत अच्छा एक प्रिपेयर्ड कोई अच्छा फूड दूंगी, देन यू विल नॉट गो फॉर द कन्वेंशनल। आपकी जो लेग्यूमिनस फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर एक्चुअली जेनेटिकली दे आर नॉट मेंट फॉर हायर प्रोडक्शन, उनका काम है सबसिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप लेग्यूमिनस फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन देंगे तो उसका रिस्पॉन्स तभी आएगा जब आपके अंदर, आपकी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम है, दैट इज वन थिंग। उसके बाद उसके अंदर न्यूट्रिएंट देने पे उनका जो नेचुरल जो नॉड्यूलेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी है वो ज्यादा नहीं होती, क्योंकि बिकॉज दे आर गेटिंग रेडिली अवेलेबल फूड।
सो इसमें जो रिकमेंडेशन है यू हैव टू गो बाय इट। उसके अंदर आपको सिर्फ 20% जो 20 kg है वो एज अ स्टार्टर डोज देनी है इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। किसी भी बायो फर्टिलाइजर को देने का जो प्रॉपर तरीका है वो आपको फॉलो करना है, देन ओनली यू कैन फेच द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायो फर्टिलाइजर। थैंक यू Good evening, ma'am. मैम आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज प्लीज। मैम मेरा क्वेश्चन है जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर है। मैम जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन है जो न्यूट्रेंट की, तो ਆਪਾਂ दो फॉर्म में करते हैं, या तो ਆਪਾਂ ब्रॉडकास्टिंग करते हैं या ਆਪਾਂ मैम जो जब प्लांट को मतलब कि या सीड को ਆਪਾਂ लगाते हैं तब करते हैं सीड ट्रीटमेंट के ऊपर, है ना। तो मैम इसका कोई अनदर कोई ऑप्शन है, जैसे कि मतलब ब्रॉडकास्टिंग में बहुत सारा न्यूट्रेंट है जो अपना की सॉइल के अंदर लीक आउट हो जाता है, तो कोई और वी वर ऑप्शन? टॉकिंग, आई गॉट योर क्वेश्चन। आप साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे हमने बताया था कि प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द बेस्ट मेथड इज ब्रॉडकास्टिंग। तो सबसे कन्वेंशनल तरीका है जो बहुत ही पुराने समय से यूज करते हैं। हमारे पास आइडियली जो फर्टिलाइजर है वो सीड के नीचे होना चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइजर और सीड को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। वी शुड हैव अ सीड कम फर्टी ड्रिल। आपने देखा होगा वेयर द फर्टिलाइजर इज प्लेस्ड बिलो द सीड। हम बैंड प्लेसमेंट की बात भी करते हैं, ठीक है। सो दैट इज और आपने जो सीड ट्रीटमेंट की बात की थी, तो सीड ट्रीटमेंट से ओनली बायो फर्टिलाइजर्स कैन बी गिवन। सीड जो आपकी कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स है वो सीड ट्रीटमेंट के माध्यम से नहीं दिए जाते। एंड नेवर मिक्स सीड एंड फर्टिलाइजर बिफोर सोइंग। ब्रॉडकास्टिंग इज मोस्ट कन्वेंशनल मेथड। बेटर गो फॉर सीड कम फर्टी ड्रिल और बैंड प्लेसमेंट। या फिर आजकल हम जो फॉलियर एप्लीकेशंस की बात करते हैं, वी टॉक्ड अबाउट नैनो यूरिया आल्सो। So you put 50% of your nitrogen requirement through prilled urea, and that should be followed by 2 foliar spray of nano urea, one at आपका टिलरिंग के टाइम में और दूसरा सीरियल क्रॉप्स में उसमें फ्लावरिंग के टाइम में। So they are the two ideal stages here. Good evening, ma'am. Ma'am, I hope in your please. PPT, you have mentioned one term, carbon sequestration. Ma'am, I want Yes. to ask, like, is this feasible for farmers having 2-3 hectare land, or only big farmers can utilize the carbon credit or carbon sequestration? नहीं, इसमें तो बहुत सारे रेगुलेशंस भी है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब देखो, अगर आप कोई भी क्रॉप ग्रो करते हो वो भी एक तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ही है ना। आपने एक मस्टर्ड का सीड जमीन में डाला, उससे प्लांट बनेगा, है ना। उसका जो पूरा बायोमास होता है वो भी एक तरह से सिक्वेस्ट्रेशन है। कार्बन इज द बिल्डिंग ब्लॉक। आपकी बॉडी में जो कार्बन है वही प्लांट के अंदर भी है, ठीक है। वी आर डूइंग, बट दैट इज नॉट सिक्वेस्ट्रेशन इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसलिए हम जीरो टिलेज की बात करते हैं। वो इसलिए कि आपका जो अबव ग्राउंड तो बायोमास आपने निकाल लिया, जो बिलो ग्राउंड बायोमास मिट्टी में रहा है ना इन फॉर्म्स ऑफ रूट, दैट इज अ काइंड ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। उसको फिर माइक्रोब्स यूटिलाइज करेंगे, माइक्रोब्स बढ़ेंगे, दे विल यूटिलाइज इट फॉर देयर ओन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। So that is sequestration, but that is also not a permanent sequestration. दूसरा, आपने फार्मर्स की बात की, इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का लैंड होल्डिंग से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। You are growing a crop with a good biomass, that is also a type of sequestration. So that is there. अब आपको कोशिश ये करना है कि वो मिनरलाइज होके वापस ऊपर ना जाए, ठीक है। If you are burning, it will go in the form of CO2 और कार्बन this monoxide. ये सब आपको अवॉइड करना है। गो फॉर जीरो टिलेज, गो फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस एंड गो फॉर द मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल, ताकि आपका जो बिलो ग्राउंड बायोमास है वो इंटैक्ट रहे और वो मतलब डिकम्पोज होके इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो। Okay, ma'am. Thank you. जीरो टिलेज के रिप्लेस टिलेज यूज कर सकते हैं? इस चीज को, आई एम सॉरी, क्या यूज कर सकते हैं? मैम अभी आप बोले ना जीरो टिलेज हाँ, यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम कन्वेंशनल टिलेज यूज कर सकते हैं? आई एम स्टिल नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली। जीरो टिलेज कहाँ यूज कर सकते हैं, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैम सॉइल में, जैसे आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोले ना, तो मिनिमम डिस्टर्ब को सॉइल करना है, तो जीरो टिलेज मैम वहीं पर हम कंजर्वेशन जो टिलेज होता है उसको हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का पर्पस यही है। The purpose of zero tillage is so that you minimum disturb. उसमें आपको डबल बेनिफिट है। एक तो आप किसी टिलेज ऑपरेशन को करने के लिए यू विल गो विद अ मशीन यूज करोगे तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग होगी, है ना। पेट्रोल तो डालोगे, डीजल तो डालोगे ना। डीजल उसके बर्निंग से CO2 और मोनोक्साइड एंड ऑल दीज ग्रीन हाउस गैसेज आर एमिटेड, दैट इज वन। दूसरा, आप जो आपकी सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर था वो आपने उसको एक्सपोज किया, ठीक
ठीक है ना, आपने उसको सॉइल को इन्वर्ट किया, दैट विल बी चर्न एंड दैट आफ्टर दिस, उसके बाद मिनरलाइजेशन होगा और फिर वो भी CO2 रिलीज करेगा। इसीलिए कहते हैं कम से कम डिस्टर्ब करो सॉइल को, और जो उसका जो रेजिड्यू मैनेजमेंट उसमें प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट इट ऑफर अदर बेनिफिट्स आल्सो। वो भी डिकम्पोज होकर आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा। दैट वे। मैम एक जो रेन फेड मतलब कंडीशंस होती हैं उसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करें मैम? रेनफेड में आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट को आपको इन सीटू फर्टिलाइजर मैनेजमेंट भी हम कहते हैं। रेनफेड में राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप टू द न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू गो फॉर, अब रेनफेड में ज्यादातर हम क्या करते हैं, पल्सेस और ऑयल सीड्स ही लेते हैं, ठीक है। पल्सेस आर ऑटोमेटिकली लेस रिस्पॉन्सिव टू द न्यूट्रिएंट्स, आपको उसमें लिमिटेड ही देना है, ठीक है। दूसरा जो हम शुरू में जो आपको मिनिमम प्रैक्टिसेस हैं वो तो आपको रेनफेड के अंदर भी करनी ही पड़ेगी। तो इसमें जो नाइट्रोजन एप्लीकेशन है इसीलिए हम उसको स्प्लिट नहीं करते ज्यादा। एक तो उसका रेनफेड के अंदर रिक्वायरमेंट इरिगेटेड के कंडीशन में जस्ट हाफ होती है, एंड हाफ ऑफ दैट इज ऑल्सो टू बी अप्लाइड एज बेसिक। आप सोइंग के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन तो करेंगे, इधर यू विल गो बाय सीड ड्रिल और इवन विद द हैंड प्लो अंडर रेनफेड कंडीशन, तभी आपको एंटायर न्यूट्रिएंट अमाउंट जो देना है। देयर इज लेस स्कोप ऑफ टॉप ड्रेसिंग, हाउएवर विद लिमिटेड वाटर यू कैन गो फॉर foliar application of nutrients under rainfed condition। the मैम crop इसमें का growth क्या भी होता है जो जैसे कि मैम ड्राइनेस आ गया ना कि वो मतलब कि अपना बारिश नहीं हो रही है, तो मैम वो जो अपना नाइट्रोजन है या कोई भी है वो प्लांट को हार्मफुल हो जाता है तब, है ना ज्यादा? नहीं, हार्मफुल तो नहीं होता, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। आप सोइंग के लिए और जर्मिनेशन के लिए यू नीड अ मिनिमम मॉइस्चर, एंड दैट मिनिमम मॉइस्चर इज सफिशिएंट फॉर योर फर्टिलाइजर टू बी अप्लाइड, मतलब गेट अवेलेबल फॉर द क्रॉप। उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। जो सोइंग ऑपरेशन के टाइम में यू हैव टू पुट योर एंटायर फर्टिलाइजर, दैट इज। मैम मैम जैसे हम ज्यादातर अडॉप्ट कर रहे हैं जीरो टिलेज, मैम उसकी वजह से मैम हार्ड पैन क्रिएट नहीं होंगे? अगर लॉन्ग टाइम तक हम जीरो टिलेज कर रहे हैं और प्लोइंग नहीं कर रहे तो हार्ड पैन क्रिएट होने के चांसेस नहीं है मैम खेत में? देखिए, हार्ड पैन जो होता है वो ज्यादातर क्रिएट होता है एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर, जब आप कन्वेंशनल टिलेज करते हो, ठीक है। आप कन्वेंशनल टिलेज में ऊपर 15 सेंटीमीटर जो लेयर है उसको पल्वराइज करते हो, लेकिन आप सपोज आप जितने ट्रैक्टर पासेस, आप एक ट्रैक्टर का वेट देखो तो हार्ड पैन इज ऑफन क्रिएटेड एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर। और वो जो रूट्स जो है आपको पता होगा कि ज्यादातर इट ऑफन गोज बियॉन्ड 1 मीटर ऑल्सो। तो हार्ड पैन इज ऑफन क्रिएटेड। आपको ऊपर सॉइल में कॉम्पेक्शन शुरू में 1 या 2 साल में लगता है, बट अगेन आई सेड कि तीनों प्रिंसिपल्स आपको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के एक साथ करने होंगे, ठीक है, जिसमें आप रेजिड्यू मैनेजमेंट भी करेंगे। जब आप रेजिड्यू मैनेजमेंट करते हो एंड द रेजिड्यू कवर जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर सॉइल की बल्क डेंसिटी को धीरे धीरे कम करता है, उसको बढ़ाता नहीं, ठीक है। तो जो आपको जो हार्ड पैन का प्रॉब्लम है दैट इज मोर कॉमन अंडर कन्वेंशनल टिलेज एज कंपेयर टू कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इफ यू फॉलो प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग रेजिड्यू मैनेजमेंट। दूसरा आपका क्रॉप्स का सिलेक्शन है, हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स, तो ना कि सिर्फ सीरियल सेंट्रिक। हम लोग अलग अलग क्रॉप्स जब लेते हैं तो रूट एक्सप्लोरेशन जो है सॉइल डेप्थ में अलग अलग होता है। कुछ प्लांट्स ऊपर से ऊपर रूट ग्रोथ ज्यादा होती है। दूसरा, जब आप टिलेज नहीं करते हो तो आप जो रूट्स हैं वो ऑटोमेटिकली वहां डिकम्पोज हो जाती है, जहां रूट होगी आपके प्लांट की वही डिकम्पोज होगी। इनफैक्ट वो ज्यादा अच्छी बरोज बनाती है। और जितनी भी स्टडीज हुई है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इनहांसेस द सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटीज, जिसके अंदर आपके अर्थवॉर्म की एक्टिविटीज बढ़ती है, माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि माइक्रोब्स को सबस्ट्रेट मिलता है, ठीक है ना। आपने रूट्स को वहीं रखा है जहां है, ऊपर से काटा फिर एक नेक्स्ट क्रॉप लगा दी, उसकी रूट्स भी आ गए। So that on a long run, maybe as I told you, 2 to 3 years is the gestation period, but you are not losing in that period also. उसके बाद में there will be further pulverization, और उसको हम बोलते हैं biological tillage। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में बायोलॉजिकल टिलेज होता है, मैकेनिकल टिलेज नहीं होता। और बायोलॉजिकल टिलेज इज डन बाय सॉइल माइक्रोब्स, माइक्रोफोना एंड मैक्रोफोना इंक्लूडिंग अर्थवॉर्म्स। हेलो मैम। हाँ जी हेलो मैम। यस, वन बाय वन प्लीज कम अप। जीरो टिलेज से तो जो अपना स्पीक लाउडली, थोड़ा जोर से बोलो मुझे। मैम जीरो टिलेज में सॉइल में एरेशन अच्छे से नहीं होगा मैम।
एयरेशन अच्छे से क्यों नहीं होगा सॉइल में? मैम जैसे आई टोल्ड यू ना, देखो होता क्या है कि एक होता है सी गुड और फील गुड। आपको खेत साफ दिखाई देता है, बट इज इट ऑफरिंग द एडवांटेजेस और नॉट? एक तो ये बात है। दूसरा, हम रिलेटिव एडवांटेज देखते हैं। आप 4 ट्रैक्टर पासेस करते हो, आप एक डीप टिलेज करते हो, फिर उसके बाद आप एक हैरो या कल्टीवेटर चलाते हो, उसके बाद आप पाटा चलाते हो, उसके बाद आप सोइंग करते हो। तो 4 to 5 आर द मिनिमम ऑपरेशन विच वी डू अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। देन वी हैव अ क्लीन लुकिंग फील्ड। और आपने प्लॉमेंस फॉली का नाम सुना होगा ना, किताब लिखी है उसने, तो जो जेथरो टल था, हु फर्स्ट एडवोकेटेड जीरो टिलेज, उसने यही कहा कि एक जो आंखों को अच्छा लगे वो जरूरी नहीं है। हमने कहा एक्सेस नाइट्रोजन देने से देयर इज अ ग्रीन क्रॉप, बट डज नॉट नेसेसरली कन्वर्ट इट इनटू द प्रोड्यूस। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपके रिलेटिव बेनिफिट्स क्या होने चाहिए? Pulverization is more in zero tillage if you follow the practices of conservation agriculture after 3 to 4 years. इसमें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल टिलेज ज्यादा होता है, माइक्रोब्स की जो एक्टिविटीज है उनके साथ में उसके बेनिफिट्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल टिलेज। मैम 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 सरसों के तेल में जो एरोसिक अम्ल पाया जाता है मैम, ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है मैम, क्या इसको अम्ल को रोका जा सकता है? बिल्कुल। आप पूसा से ही कुछ ऐसी वैरायटीज निकली हैं जिनको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा जीरो टिलेज एंड डबल जीरो टिलेज, सॉरी जीरो वैरायटीज एंड डबल जीरो। जीरो मतलब एक जीरो वैरायटीज में इरोसिक एसिड लेस देन 2% होता है, और एक हम बोलते हैं डबल जीरो, उसमें इरोसिक एसिड 2% के साथ साथ ग्लूकोसिनोलेट अमाउंट आपने पढ़ा होगा। जब हम केक निकालते हैं ना, ऑयल निकाल लिया, उसके बाद कली बच जाती है, कली पशुओं को खिलाते हैं, उसमें ग्लूकोसिनोलेट एक एंटी न्यूट्रिशनल क्वालिटी होता है। वो अगर लेस देन 30 माइक्रोमोल्स है, उसको हम बोलते हैं डबल जीरो वैरायटी, जिसमें हमारे यहाँ पूसा मस्टर्ड 30 और 31 दो वैरायटीज हैं जो डबल जीरो है। उसके अलावा पूसा मस्टर्ड 25, 26 और 28 सिंगल जीरो वैरायटीज है, जिसके अंदर इरोसिक एसिड कम है। ऑलरेडी ये वैरायटीज पूसा इंस्टीट्यूट से निकली हुई है एंड दीज आर वेरी पॉपुलर इन फार्मर्स फील्ड। थैंक यू मैम। Ma'am, you told us Okay, कि Thakur 4:2:1 you is can the ask your ideal question. ratio. You are trying for some time, sir. Thakur sir, you can ask your question. मैम You are not audible, sir. Still not audible, sir. Okay, because sir is not audible, anyone else would like to ask question? Yes, Okay, ma'am. you can continue. मैम Ma'am, you told us 4:2:1 is the ideal ratio of NPK we should apply in our field, but in some state like Punjab and Haryana, वहाँ पे इतने डिस्टर्ब रेशियो में यूज कर रहे हैं एनपीके, तो वो आइडियल रेशियो क्यों नहीं यूज करें? लाइक अगर आइडियल बनाया गया 4:2:1, देन मेरे अकॉर्डिंग आइडियल से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। Obviously that was the concern ना। Actually since इसके बहुत सारे reasons हैं। One is availability। अब और conventionally फार्मर को अगर चाहिए कि मुझे कोई आयरन के लिए, इसमें सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सॉइल टेस्ट। नाउअडेज वी टॉक अबाउट सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको 16 जो इसमें एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं, पैरामीटर्स के बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अवेयरनेस। यू शुड नॉट फोकस ओनली ऑन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए किसकी कमी है। दूसरा, आपको उस न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। देन इन सब की जो है मैंने आपको बताया यूज एफिशिएंसी इज ओनली 1 to 2%। उसके लिए आपको सॉल्युबलाइजर्स चाहिए, उसके लिए ये सब चाहिए। तो फार्मर्स यूजुअली गो फॉर, एंड ही इज ऑलवेज इन अ हेस्ट। वो बहुत जल्दी में होता है ना, हमेशा एक हार्वेस्ट हुआ फिर ये हुआ। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस, देयर इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, देन द कॉम्प्लेक्सिटीज for the supply of these nutrients is a constraint. And obviously 4:2:1 is an ideal जो खुद के लिए ही नहीं, बाकी और सारे nutrients की availability को भी improve करेगा, because soil needs a balance। आपने एक वो ग्राफ देखा होगा ना, सब ज्यादा close to neutrality, maximum nutrients are available। तो as I told you कि these all are essential elements ना। आयरन का सब्स्टिट्यूट नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूट जिंक नहीं है। So until unless you have a balanced availability of nutrients, it's not going to help, rather it will cause more harm. That was my point of concern while showing the slide.
Thank you, ma'am. मैम एक पूसा कैप्सूल कहाँ से मिल सकते हैं Pusa जो आपने Institute में बताए there थे? is a division of microbiology. I can share Dr. Laveen's number, who is the scientist behind developing this Pusa decomposer. So I can share the number. Division of Microbiology, IRI, it's available. And the cost of 4 capsules is only 25 rupees. That's a good thing. यही तो मैम अभी तक मार्केट में नहीं, तो आई नहीं है। नहीं, actually I will advise all of you to IRI का ना YouTube channel है. Every Saturday we upload पूसा समाचार. So पूसा समाचार उसमें हर हफ्ते आता है. उसपे पूसा डिकम्पोजर के कुछ एपिसोड्स हैं that you can go for it for the proper protocol. बाकी कैप्सूल्स के साथ में भी आपको एक बुकलेट दी जाती है how to use it. That's very user friendly and it's very effective. ओके या मैम, Yes, You can ask, sir. Yes, you can Yeah. ask. Yes, sir. मैम सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राठौर का जो है बहुत धन्यवाद करूंगा। उन्होंने बहुत ही अमेजिंग वो जो है इंफॉर्मेशन जो है हमें दी है। Yes. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी उन्होंने जो है रिसोर्सेज के प्रति हमारे को जागरूक किया है, उसमें हमें अवेयरनेस जो है कहीं ना कहीं जो लैकिंग फील्ड में जो है वो उसकी कमी नजर आती है। अगर हम अवेयर करते हैं, बाकी हमारे पास जो है रिसोर्स कंजर्वेशन तभी हो पाएगी जब जो यूजर है, एक्चुअली एंड यूजर फार्मर जो है वो अवेयर होता है। वाटर को भी ऑप्टिमाइजेशन तभी किया जा सकता है अगर वो जो है अपने खेत में जो है अच्छी तरह से जो है उसका यूज करता है। न्यूट्रिएंट्स को भी हम तभी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अगर हमारा फार्मर जो है वो उसको जो है यूज सही तरह से करता है। दूसरा मैम कपिला मैम ने जो है बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, परंतु ये जो है हमारी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परंतु फील्ड में जो है कुछ हद तक जो है अभी हमें जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा मेजर इशू जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स के अवेलेबिलिटी का है, जो कि टाइमली अवेलेबिलिटी जो है फर्टिलाइजर की, क्योंकि नाउ इट इज रबी सीजन एंड सम पीपल आर क्राइंग फॉर अवेलेबिलिटी आल्सो। अगर इसके बाद हमारे जो है अगर मिक्सर आता भी है, फास्फोरस और पोटासिक फर्टिलाइजर आती भी है, देयर विल बी नो यूज, क्योंकि उसको जो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका थोड़ा सा विकल्प जो है हम लोग चाहेंगे कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए जो है ज्यादा प्रमोट करने का जो है प्रयास करें, क्योंकि अगर टाइमली अगर वो नहीं आती हैं तो लेटर स्टेजेस में हम फोलियर स्प्रे के माध्यम से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और डॉक्टर कपिला ने जो हमारे को जो एक ग्रॉस बैलेंस और नेट बैलेंस का जो बताया कि हमारा नेट बैलेंस जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, मेरे को लगता है डॉक्टर कपिला की ये जो है हमारा नेगेटिविटी जो है ये ड्यू टू दिस इन एब्सेंट यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से रहता है नेट बैलेंसिंग में, या कोई और रीजन है इसका? सर इसके 2-3 रीजन है। एक तो अगर आपका अपटेक ज्यादा है अगर इन मतलब एप्लीकेशन से, तो दैट विल क्रिएट एन इम्बैलेंस। दूसरा, आप 2 की जगह अभी 3 क्रॉप्स लेने लगे हैं तो इंटेंसिव सिस्टम्स में भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है सर। और तीसरा अगेन जो सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी अगर कम है या न्यूट्रिएंट, तो आप कितना भी आप ऊपर से दे दीजिए, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प और दैट विल नॉट इनहांस द इनिशियल मतलब द सॉइल क्वालिटी। सो ये 2-3 रीजंस है जिसके कारण ये इम्बैलेंस बढ़ता ही जाता है सर। अनटिल अनलेस इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें और एक सॉइल का मिनिमम सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, जैसे हम जो बोलते हैं ना थ्रेशोल्ड 0.25 to 0.5, उतना अगर इफ इट इज लेस देन 0.5 तो आपकी न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन भी बहुत यूजफुल नहीं होती है सर। हाँ, और डॉक्टर साहब अभी जो आप जो है इसमें जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, जिसमें जीरो टिलेज और दूसरी जो हमारी मिनिमम टिलेज की बात आती है, तो उसमें थोड़ा सा जो है कुछ एक रिपोर्टिंग इस तरह की हुई है कि हाँ उसमें हमारे जो है प्लांट एस्टेब्लिशमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरा जो है मिनरलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, और उसको जो है मिटिगेट करने के लिए हमारे को जो यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। और दूसरा एक चीज और भी है कि जो पेरिनल बीड्स हैं उनका जो है अपने जो है वो ज्यादा होने की वजह से हमारे जो इंसेक्ट पेस्ट जो है उनकी भी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर एक्चुअली किसी भी नई टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज होने में हमें टाइम लगता है, ठीक है। हम मतलब ऑलमोस्ट 200 ईयर्स से टिलेज का रिस्पॉन्स देखते हुए आए हैं। सो वी शिफ्टेड, एक थ्योरेटिकली एक कॉन्सेप्ट आया और कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया, देन वी इंट्रोड्यूस्ड जीरो टिलेज, ठीक है। उस जीरो टिलेज के इंट्रोडक्शन के साथ में हमने और चीजों को स्टैंडर्डाइज अभी तक नहीं किया है। जीरो टिलेज के साथ में हम फर्टिलाइजर कन्वेंशनली दे रहे हैं, ठीक है ना सर। सोइंग हम कन्वेंशनली कर रहे हैं,
तो और हमारी वेराइटीज जो है वो कन्वेंशनल टिलेज की है। तो अनटिल अनलेस पूरा पैकेज नहीं आता है, जब तक हमको कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस दिखाई देते हैं, एंड देन वी वर्क ऑन इट। जैसे हमको लगा कि अभी हमें इमीडिएटली सब लोगों को खाना देना है, वी वेंट फॉर दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की डिसएडवांटेजेस आपको 30 साल के बाद पता चले, देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो आपको एक होता है इमीडिएट नीड को एड्रेस करना होता है। इमीडिएट नीड क्या है? एनवायरनमेंट के लिए आपको COP27 में जवाब देना है ना, आपको फ्यूल कंजम्पशन के लिए आपके इश्यूज हैं, देन यू गो फॉर फाइन। हमको एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेडमिकली एक चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो रिसर्च मतलब साइंस एंड प्रैक्टिकलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। आप साइंस को, और जैसे हम उनकी लर्निंग के बेसिस पे हम फिर और एडवांसमेंट करेंगे। फिर हमको समझ में आया कि भी एस्टेब्लिशमेंट में इशू है, नाउ वी आर गोइंग फॉर बेटर प्लांटर्स। हमारे पास लकी सीडर है, हमारे पास हैप्पी सीडर है, हमारे पास जीरो टिल ड्रिल्स हैं। तो लाइकवाइज जैसे जैसे आप साइंस में प्रोग्रेस करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, और आप फिर उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए फर्दर रिसर्च करते हैं। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट इज व्हाई वी से रिसर्च। So I admit that there are some concerns with the zero tillage and conservation agricultural policies, but still the advantages I think in the long run are more as compared to the challenges. That was my डॉक्टर साहब, इसको जो है हमें फार्मर फील्ड में जो है इसको पायलट बेसिस पर ही लेकर के जाना चाहिए, हमें इसको एडवोकेट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज मशीन का सपोर्ट अगर हो जाएगा सर, एक्चुअली मशीन में जब कस्टम हायरिंग आने लगा ना, like you don't need to have purchase a lucky seeder every small farmer. कहीं कस्टम हायरिंग के बेसिस पे एक विलेज में एक क्लस्टर में एक है, that will do sowing for all. तो अभी सर जब से प्राइवेट सेक्टर इसमें आया है ना, तब से ये कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके, एंड मे बी in 10 or 50 or in a decade or two it will come up like anything. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कपिला। बहुत ही अच्छी जानकारी जो है हमारे रिसर्चर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाला फ्यूचर जो है डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज टेक्नोलॉजीज। एंड थैंक्स मैम मेरे को जो है चांस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। It was a pleasure and I really enjoyed the interaction session. So had I been knowing that much interaction, I would kept the presentation short. It was great experience. Thank you so much. Ma'am, kindly share PPT. Ma'am, please Sure, share your PPT. Okay. Sure. We will resolve this issue. Okay, it's my pleasure to thank Dr. Kapila Shekhawat ma'am for giving her insight about nutrient management in agriculture context. She has highlighted the comparison of status of soil nutrition from Green Revolution to till now. She has explained the challenges associated with soil nutrition management and why there's a need to move towards sustainability. She has also suggested ways to cope up with the challenges associated with nutrient management. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful session. Thank you for giving the opportunity. It was great being with you for this hour. Thank you. Thank you. See you. At the end, I would like to thank all the organizers who have organized this event so nicely. We are getting much and much every day. Thank you very much. Thank you all. Okay. Thank you all. Have a great dinner and a very good night. Namaskar. Okay, I would also like to thank Dr. Sanjay Singh Rathod sir for telling us about the current challenges of agriculture. He also highlighted how to lead agriculture towards sustainability. So this is all for today's session. Tomorrow we will have with us Dr. Sailesh Kumar Singh, Dean Agriculture, ITM University, Gwalior, as chief guest, and Dr. Akshay Talukdar, Principal Scientist, ICAR New Delhi, as lead speaker. I would like to thank the members of advisory committee, members of organizing committee, and all our partners. And there's a short announcement for all the participants. The links for Telegram group and WhatsApp group have already been shared in the chat box. Please go through the link, register yourselves, and be the parts of WhatsApp and Telegram group. You will get all the details, content, and PPTs of training there. So please join and register yourselves and get into WhatsApp and Telegram group. So thank you so much, participants, for your enthusiastic participation. And we will meet again tomorrow. So a very good night. Thank you. Thank you, ma'am. Hello, Ma'am, ma'am. we didn't find any link this day. एक बार chat box में फिर Okay, मैम एक it बार has been shared in the chat box. You get there, or wait for some moment. It will be shared soon. मैम एक बार फिर से देख दो What? मैम chat box Okay, में chat box में फिर I से would देख दो एक like to बार request the technical team to तो share group the के link of Telegram group and WhatsApp group in the chat box.
It has been shown. Okay. Go and click on that link, register yourself and get into WhatsApp and Telegram group. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you so much for such an enthusiastic participation. Thank you all. A very good night. Okay, good night, madam. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Chaudhary. Thank you, ma'am. Thank you very much. Good night, sir and ma'am. Have a great day and night.